First thing, we're going to start with the polity-based current affairs. Tribunal reforms bill. Tribunals क्या होते हैं? Anyone? Suppose मेरे को कोई problem है, अगर related to my taxation, related to my land ceiling policy, related to an IS officer, we can form a tribunal. क्या tribunal originally constitution का हिस्सा थे कि नहीं थे? Were originally tribunals a part of the constitution? No, they were added by the 42nd constitutional amendment. पहली चीज, these are what bodies? Non-constitutional bodies. These are added, these are non-constitutional bodies. संविधान में जो चीज given है वो क्या होगी? Constitutional. जो संविधान में नहीं given वो क्या होगी? Non-constitutional. एक सिंपल सी चीज है, जितनी भी constitutional bodies हैं सेंटर की, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सेंटर की, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनके हेड्स को प्रेसिडेंट. बस सिंपल सी चीज है, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं होती. इन केस ऑफ सेंट्रल, लाइक एग्जांपल आपको देता हूँ, सीएजी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. ऐसे क्लियर? सिमिलरली, और इलेक्शन कमीशन, ऐसे क्लियर? एनीथिंग व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशनल हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Apart from that, when we talk about non-constitutional bodies, कई non-constitutional जैसे Human Rights Commission, उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. बाकी चीजों में कौन आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसे क्लियर? अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान के अंदर. SC/ST कमीशन के हेड्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. ये पहले एक कमीशन होता था 338 में. क्यों? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मैं SC/ST और इसकी क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आपने स्टेट्स को पावर दे दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि आप अपना आइडेंटिफाई करोगे. सेंटर ने बड़ा आराम से वो, ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन इलेक्शंस. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि लिसन, जो हमारी पोस्ट है सेंटर की, उसके लिए ओबीसी हम आइडेंटिफाई करेंगे. तुमने अपने स्टेट में किसी को देना है तो तुम आइडेंटिफाई करो ओबीसी. Like best movie, let me go through Article 15. आप क्या हो? वो कहता मैं जाट हूँ. कहता ओबीसी क्या हो? कहता ओबीसी हूँ. कहता फिर हरियाणा में क्यों कर रहे थे? कहता हरियाणा वाले जाट ओबीसी नहीं है. ठीक है? So that's actually true. Now, यार OBCs are the backward classes. अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. जैसे पंजाब में क्या हुआ था. So Punjab mein, when the OBC thing came and the central government said, give us a list of OBC. So Punjab government majority, as you know, the chief minister is, all chief ministers have to be Jat 6. ठीक है? तो कहते हम OBC रहते हैं. फिर they saw the benefit is not coming. कहते नहीं हम भी OBC. तब तक गवर्नमेंट कहती सॉरी अब तो हो गया. So it is basically based on your posts. So what is happening? Total 641 recognized. So as I'm going to discuss this is also part of it, which is a new bill which is transcribed, which says the states get the power to identify the OBC, other backward classes. And OBC का quota मिलेगा. There was also another very interesting judgment I was reading. A former chief justice had written, he said the OBC quota itself fails grounds. उसने बोला था कि पहले क्या होता था कि जमींदार होता था, और जब आपके पास जो लैंड टिलर होता था उसकी खुद की जमीन नहीं होती थी. जब इंडिया में फ्रीडम आई तो जमींदार से लैंड ले लिया, आपने किसको दे दिया? वो टिलर को. तो आपने ऑटोमेटिकली बैकवर्ड क्लासेस खत्म कर दिए. वो तो फिनोमेना रहा ही नहीं, तो ओबीसी कोटा क्यों दे रहे हो? So he gave a very, usne bola, the judge also the one who gave the verdict said this was not presented in the case. A former chief justice had spoken about it like that. So I'm just going to discuss it, whether it stays. It's basically all for political gains. But OBC will have a which layer? Creamy layer. As I said, it is a political issue. जैसे अब पंजाब में जट सिख, like damn, we no way, हो ही नहीं सकते, हमें OBC no. And then they saw the benefits were not coming. After 5 years, they started asking for it. The government said, sorry, अब तो नहीं मिलेगा. ठीक है, वो तो benefit खत्म हो गया. So there are different sections everywhere. Like
Jats in the UP were recognized as OBCs. Other places they were not recognized as OBCs. Is it clear or not? So I'm just going to explain to you what is going to be there. That's all related to your current affairs and also related to your judgments. Now, when I say tribunal reform bill, government ने क्या किया है? Government कहता अब tribunals खत्म करके हम क्या करेंगे? अपना एक tribunals बनाएंगे जहां पे the bill seeks to dissolve certain existing appellate bodies. Appellate means the word appellate comes from appeal, and transfer their function as adjudication of appeals to other existing judicial bodies. Already provisions regarding the composition of search cum selection committees. अब ये important है, कौन committees का head करेगा? Chairperson and members of tribunals will be appointed by the central government on the recommendation of the search cum selection committee. कौन है वो committee? The Chief Justice of India or Supreme Court judge nominated by him as the chairperson with the casting. He chooses, whoever he chooses becomes the appellate authority in the tribunal. ये change कर दिया. पहले क्या होता था? ऐसा नहीं होता था. Next, 2 secretaries nominated by the central government. What are secretaries? IS officers. The top bureaucrats, they're going to give names. The sitting or outgoing chairperson or a retired Supreme Court judge or a retired Chief Justice of a High Court. The secretary or the ministry under the tribunal is constituted with no voting right. अब कौन सी है? जब मैंने बताया state tribunals will have same thing. The central government must decide on the recommendation within a period of how much time? 3 months. क्या judges के लिए कोई time है? नहीं. Government कितनी % vacancies है ये भी बात करेंगे. High Court में कितनी % vacancies चल रही है judges की? 40% seats are vacant. जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट रिजाइन बैठा ही रहता है उस पे. अभी पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कितने जजेस इकट्ठे अपॉइंट किए गए? 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के. एक वैकेंसी रहती है बस. अब जज ही नहीं थे, वुमेन भी अपॉइंट हुए. इंदिरा जयसिंह वाज द फर्स्ट लॉयर टू बी अपॉइंटेड. फर्स्ट जज कौन सी थी? मेरे को नाम नहीं याद आ रहा. That was Indira Jaising was the first woman lawyer to become जो former chief judge थे, जो अभी रिटायर हुए हैं. Is it clear? तो पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस अपॉइंट हुए? 9. उससे पहले कितने थे? There is a provision कितना है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं? 34 किया गया. कौन चेंज कर सकता है इसे? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के थ्रू आप चेंज कर सकते हो. ओके, रिकमेंडेशन कौन करेगा? पहली चीज जज सुप्रीम कोर्ट का. सेकंड, 2 सेक्रेटरीज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. थर्ड, चीफ जस्टिस रिटायर्ड. और द फोर्थ इज द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रिब्यूनल जो मिनिस्ट्री को बिलोंग करते हैं. अब मैंने बोला किस किस में होएगा? ट्रिब्यूनल्स कहाँ पे हैं? कौन से आर्टिकल में आते हैं? 323A एंड 323B ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स. ये क्या भारत में संविधान का हिस्सा था? नहीं था. It was not a part of the constitution. It was made as the part of the constitution. It's a non-constitutional body. It was not given. अब ट्रिब्यूनल क्यों चाहिए हमें? जैसे टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल, लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स. अब ये कैसे होता है? ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? सपोज आपको इनकम टैक्स आपके हिसाब से ज्यादा चार्ज किया गया, तो आप कहीं पे रिड्रेसल के लिए तो जाओगे, तो उसके लिए आप क्या आ जाओगे? ट्रिब्यूनल ऑफ टैक्सेशन. ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना? कहीं ना कहीं से तो हमने पैसा लेना ही है वापस. या फिर आपको लगता है कि सरकार आपको फालतू में क्या कर रही है? तंग कर रही है, तो आप क्या ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर दोगे. इज इट क्लियर और नॉट? With article, what is important is the article कौन सा amendment, और what is also further important is कौन committees form करेगा, committee का हिस्सा होएगा. Is that clear or not? Age कितनी है? 70 maximum. 4-year terms of office, 70 years for the chairperson, 67 for the members. Minimum age भी पहली बार दी गई है 50 years. पहली बार कोई सी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए भी एज दी गई है 50 इयर्स. आज तक कोई मिनिमम एज नहीं प्रिस्क्राइब की.
Is it clear? That is why it is important. कौन सा आर्टिकल है? 323A, 323B. 4 members की कमेटी होगी. First Chief Justice, second Judge, third Secretariats, 2 secretaries nominated by the government. 3 months का time period है. Is it clear? इसका when the Chief Justice also, when he spoke about it, he spoke and criticized for the absence of material justifying the bill. He said कि आपने bill तो लेके आ गए parliament में, आपने pass भी कर दिया, पर discussion तो किया ही नहीं आपने. Is it clear or not? एक और ऐसा कौन सा bill है जिसपे बहुत debate चल रहा था? Generally ask him. ममता बनर्जी वगैरह सब लगे हुए थे कि हमारे आप हक छीन रहे हो. कौन सा? पेगस नहीं, हक पेगसिस पे तो डिस्कशन की बात थी, वो बिल पास हो चुका है. कौन सा है वो? न्यू अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. कॉलेजियम सिस्टम क्या था? सुन लो. कॉलेजियम सिस्टम है, जज चीफ जस्टिस अलोंग विद 4 सीनियर जजेस बैठेंगे, वो एक नाम डिसाइड करेंगे जिसको उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाना. सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या है? Article 142 talks about the election of the Supreme Court judges, appointment of judges to Supreme Court and High Court, and transfer of judges of High Court as decided by the Chief Justice and 4 senior more judges. Article क्या है? 142. क्या मेरे को कोई Supreme Court judges की qualification बता सकता है? High Court judge for 5 10 years. Lawyer who has served as a lawyer for 10 years in a high court. Indian citizen, judge for 5 years, high court lawyer for 10 years, Indian citizen or an eminent jurist. ये हर कोई गलत करेगा in the eyes of the president. Because अब तो jury रही नहीं. Last case कौन सा था jury का? Movie भी है उस पे. Rustam. The movie, but that's not the case. It was a Navy official. The story is similar, but it's not about okay, what all. So basically what had happened, it was the last case ever. So the Navy officer actually did kill his wife's lover, but there was nothing related to your corruption and all that. So it was a Parsi versus a Gujarati case. So the Parsi media was influencing, the Gujarati media was influencing. So that is where the jury was the last time ever said. So if you were a member of the jury, you could have been chosen as the Supreme Court judge. So that is judge. अगर आप eminent jurist हो, जो 10 लोग बैठे थे ना जो decide करते हैं, अगर आप उनमें से होते eminent jurist, तो आपको पास भी chance होता क्या बनने का? Supreme Court judge. It happens in US where you can either try your case by jury or by direct. Is it clear or not? So you could have done that. So that's something that you'll get it wrong. Recommendation of the names of lawyers or judges are sent by collegium to the central government, which acts on these recommendations. As I said, इसका कोई time period ही नहीं given. So Supreme, अब suppose government नहीं agree करती Supreme Court के उससे, गवर्नमेंट वापस सजेशन भेज देती है, सुप्रीम कोर्ट वैसे वही नाम भेज दे, क्या गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा कि नहीं? गवर्नमेंट हैज टू, बट गवर्नमेंट कैन डिले इट. सो गवर्नमेंट डिले के प्रोसेस में उसका टाइम पीरियड ही निकल जाता है, वो रिटायर हो जाता है तब तक. गवर्नमेंट कहती है ओहो गलती हो गई, सॉरी. Is it clear? So for the first time, how many judges were chosen for the first time? Why? It's now 9 persons have been selected at one go, first time in our history. 34 नहीं 34 में से एक की वैकेंसी बची है, 33 हो चुके हैं. सो इमेजिन करो इससे पहले 9 सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं थे, एपेक्स बॉडी के जज ही नहीं थे. 40% जजेस है ही नहीं किसमें? हाई कोर्ट में. अब केस क्या सुनाए? जज साहब ही नहीं बैठे हुए, जज साहब कहते है ही नहीं कोई, अब कैसे करें? Exactly. So they are being overburdened. So cases are not going through. Is it clear? Which article is it? 140. Sorry? Overall. So now, see, the judges cannot, now it's
अब क्या होता है जजेस में भी वो सिस्टम हो जाता है ना, बेंच सिस्टम आ जाता है हाई कोर्ट्स में। कई बार आपको 2 जज चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन केस में। अब बेचारा जज वहां पे कहीं बैठा है, वो कहीं और बैठा है, दोनों आएंगे कैसे? दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल केस के लिए, तो दोनों आए। व्हेन आई से देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स, राइट? एक सिंगल जज का कोर्ट होता है, एक बेंच का कोर्ट होता है। बेंच समझते हो? वेयर पीपल आर सिटिंग टुगेदर, वेयर ऑल द जजेस आर सिटिंग टुगेदर। आज तक सबसे बड़ा बेंच कौन सा हुआ है? 13 judges bench. It's after this case itself that we got basic doctrine structure, right? When I say this basic structure, what does the word basic structure mean? एक संविधान में एक structure दिया, A constitution that cannot be amended. that cannot be changed by the government. Like you have been given the right to vote, the government cannot take away your right to vote. 13 judges sat down together for the first time. So they had, now to change this judgment, how many judges have to sit? 15. So they keep on increasing by 2. अब बेचारे हाई कोर्ट्स में है ही नहीं जज, तो बैठेंगे कैसे? तो केस कहाँ पे रह जाता है? हाई कोर्ट में रह जाता है। 20 साल लग जाते हैं, तब तक बाय बाय टाटा। क्रिमिनल क्या ये क्या हर कोई क्या हुआ? स्पीड ट्रायल किसको बोलते हैं? कौन से केसेस को बोलते हैं? Odd numbers. Speedy trial is in certain cases like rape के उसमें पाती है, but again judges available होने चाहिए ना। पहले तो अलग बात है, जज अवेलेबल होएगा तभी जजमेंट आएगी, सही गलत वो अलग बात। जज ही नहीं है तो जजमेंट कैसे आएगी? तो 20 साल तक केस खींचा गया, उसके बाद गवाह भी मर गया, सब मर गए, बस कौन कमा के गया? काले कोट वाला, वो कमा के चला गया, बस। अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, ओके। It has to be odd number. In case of your, it depends. Odd numbers for certain cases. Like when I say a single bail bench, whether Supreme Court or High Court is going to be a single judge. Your civil cases, आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कितने जज होंगे? 2। अब दोनों की नहीं बन रही तो किसका मानेगा? जो सीनियर मोस्ट जज है उसका माना जाएगा। Is that clear or not? For constitutional you have odd. Is it clear or not? Civil cases, property cases हैं तो 2 होएगा, कई constitutional case होएगा तो 3 मिनिमम। आज तक बात ही ना होगा। जैसे हमने बात किया कि मैंने बोल दिया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिमूव करना है, या फिर अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में से वर्ड सेक्युलर रिमूव करने की कोशिश करूं, मेरे को 13 जज बेंच के बाद 15 जज बेंच पे जाना पड़ेगा। क्यों? चाहे हमने प्रीएम्बल में, जैसे मैं जनरली बोलता हूँ, प्रीएम्बल में बोलते हैं गवर्नमेंट सेज कि सेक्युलर वर्ड तो कहीं गिवन ही नहीं था, कांग्रेस ने जानबूझ के अड़ाया। But we all, the country is born secular because we have been given the right to follow a religion. Yes or no? मैं तिलक लगा के घूम सकता हूँ, पग बांध के घूम सकते हो, किरपान लगा के भी जा सकते हैं। So there's another very interesting story. Okay, एक example आपको बताता हूँ. So this happened. This is a very notorious case though. So this guy he was a former IPS officer. मान किसी ने सुना है? सिमरनजीत सिंह मान. So he generally talks about separation and everything. So what in Punjab, in Amritsar. So somebody provoked him saying that तू केड़ा सरदार है यार, तू इन्नी जी करपान लेके जाना, बड़ी करपान लेके जा पार्लियामेंट. So he got pumped up. वो इतनी बड़ी लेके चला गया उसका. You're allowed to carry, but it should not be a threat. Is it clear? You see ना, somebody जो जिसने वो किए हुए हैं,
somebody who's following the tenets of Sikhism is supposed to carry, you can do it, right? वो इतनी बड़ी उठा के ले गया, हाँ, अमृतसर दा सिमरनजीत सिंह मान, तो इतनी बड़ी लेके चला गया, उन्हें चाकता सी किसी ने, अब उसको पार्लियामेंट में, so we are allowed to follow religion. ऐसे क्लियर? अगर मैं जनरली बोल रहा हूँ कोई भी संविधान से रिलेटेड चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर में बता दिया गया उसको ऑल्टर करना हो तो क्या करेंगे? 15 जज बेंच आएगा. हम बोलते हैं अनुराग को राइट टू वोट नहीं देना, ऐसे क्लियर? नहीं, गवर्नमेंट बोलती है देखो जो टैक्स नहीं पे करता उसको राइट टू वोट नहीं देना. तो राइट टू वोट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट चेंज इट. यस और नो? किसको नहीं होता? सबको अवेलेबल है. सिर्फ जो क्रिमिनल्स होते हैं, जेल के अंदर बैठे होते हैं, अटॉर्नी राइट टू वोट होता है उसके पास. राइट टू वोट सबके पास है, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके सबके पास है. वो राइट टू वोट इन पार्लियामेंट नहीं होता. पार्लियामेंट अलग है, राइट टू वोट इलेक्शन में तो हर किसी को राइट टू वोट है, क्रिमिनल भी हो, जेल चाहे फिर नहीं, जेल में कन्विक्ट, अगर जेल में कन्विक्टेड नहीं है, केस दर्ज है, तो तू इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वोट नहीं कर सकता. ठीक है, ये अच्छा बात है. चाहे यू माइट बी इन जेल, नॉट कन्विक्टेड, राइट, सिर्फ आरोप लगे और आप जेल में हो तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो. राइट टू वोट बिकॉज जेल से बाहर नहीं अलाउड होएगा, यू माइट बी अ थ्रेट, इस करके आपका राइट टू वोट तब कब किया जाता है, पर आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, जीत भी सकते हो. साउथ क्या पूरा यूपी, राजा भैया, फिर और कौन से हैं, मुख्तार अंसारी, पूरा. हैव यू हर्ड ऑफ द नेम मुख्तार अंसारी? पूरा अभी रोपड़ से लेके गए. हाँ, नहीं, पर ये इलेक्शन में खड़ते हैं, ये एमएलए भी तो है. एक और है बीएसपी का आदमी, इलेक्शन जीत गया, उसके अगेंस्ट क्या लगा था, अभी पेपर में वापस आया है. द गर्ल हैड कमिटेड सेल्फ इमोलेशन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस. सेल्फ इमोलेशन एज लाइक बर्निंग. व्हेन ही वन द इलेक्शन, अब्सकाउंडिंग था, एमपी भागा हुआ है, एमपी जीत गया. बीएसपी का था, ही वन द इलेक्शंस, प्रचार प्रचुर नहीं किया उसने, उस पे रेप चार्जेस लगे हुए थे, सो पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिम, और उसके क्या लगा हुआ है, क्रिमिनल चार्ज. एफिडेविट में भी साइन करके दिया मेरे अगेंस्ट, और लोगों ने जिताया है फरार. उसके बाद आया कि जब फर्स्ट टाइम यू हैव टू टेक अ ओथ, भागा हुआ है भाई साहब. पार्लियामेंट में तो क्या है, फिर उसने इम्यूनिटी ले ली. सो राइट नाउ दैट गर्ल, अभी बीएसपी का आई थिंक सो महीने पहले आया, सो द गर्ल कमिटेड सेल्फ इमोलेशन. ओके, हम इस पे भी बात करेंगे. I'm just going to discuss it out. Okay, as I said, जो भी मैं बात कर रहा था, again, delay in proceedings of criminal cases against MPs and MLAs. A 3-judge bench headed by the Supreme Court Chief Justice hearing a plea about a large number of criminal cases pending against both sitting and former MPs and MLAs. एक और चीज बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसी में एक जजमेंट दे दिया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक एफिडेविट फाइल करेंगी उनके नॉमिनीज के अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस हैं. तो किसी का 45% आ रहा है, किसी का 54% आ रहा है, जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस. अब सीरियस क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, अगर आपको 2 ईयर से ज्यादा ऑफेंस लग रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, सीरियस. 2 साल से ज्यादा किसी को थप्पड़ मारने का केस नहीं है, मर्डर, डेफेमेशन, ये वगैरह के डेफेमेशन में 2 साल की सजा नहीं होती. It takes time, बहुत ज्यादा है. Detail, as per report submitted by Supreme Court Amici Curie, a large number of cases are pending against sitting MP MLAs
substantial manner of these cases falling under serious like prevention of money laundering. 2002 के केसेस लगे हुए हैं, 20 साल हो गए हैं, सीबीआई के अंदर पड़े हुए हैं, अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हो क्या रहा है, even the charge sheet has not been filed, alleged to be have committed several years ago. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आप करो, रूलिंग पास कर दी है, मैंडेटरी टाइम बाउंड मैनर, नेक्स्ट 6 months में जितने भी केसेस हैं वो खत्म करो। अब जजेस ये क्यों करते हैं, आपको जुडिशरी में एक पॉइंट बताता हूँ। हायर जुडिशरी में जाने के लिए क्या होता है, पॉइंट्स मिलते हैं। जो सबसे, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, 20 साल से पहले वाला केस जो जल्दी खत्म करेगा उसको 3 पॉइंट्स बनेंगे, 10 साल वाले को 2 पॉइंट्स, उनके रिपोर्ट्स में ऐड होना शुरू हो जाता है। तो जितना पुराना केस आप जितना जल्दी खत्म करोगे उतने पॉइंट ज्यादा। तो जजेस आजकल ऐसे काम करते हैं पॉइंट्स के वास्ते, चाहे जजमेंट जो मर्जी दे तो पॉइंट इकट्ठे होने चाहिए। हाँ तो नहीं हुण मैं वही दस रहा ना, पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो वो क्या करते हैं, अब जितने भी पुराने केसेस हैं, सो इफ यू गेट पॉइंट्स यू गेट हायर प्रमोशंस, राइट। सो व्हाट दे डू इज जल्दी से बुलाते हैं, जिसका 20 साल पुराना केस है बुलाओ, पेशी जल्दी लगाओ, तरीके बहुत जल्दी, नहीं तो 6-6 महीने हो जाती हैं। तो दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। So what they started doing is they've said finish all these cases within a certain freeze on the transfer of judicial officers. Benefits of points is your promotions. You get best promotions. The more points you have, it become. Well, it is altogether different because then again Supreme Court के ऊपर था, Supreme Court अपने आप को point तो देने नहीं वाला. It is for lower judiciary. Because ट्रायल कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट, उसमें केस गया हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, लोअर कोर्ट से। इज इट क्लियर? लोअर कोर्ट में अगर 20 साल लग गए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए तो सोच लो क्या फाइल, क्या 6 महीने की डेट आती है हाई कोर्ट में। सीधी बताता हूँ, एक बार ये वाला वकील नहीं आया, एक बार दूसरी साइड का नहीं आया, 1 साल ऐसे निकल गया। पहले डेट लगेगी, उस दिन जज नहीं आया, जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगा हुआ है, बिकॉज 40% जजेस तो है ही नहीं। कोरोना ने वैसे ही लगा दी, 2 साल कोई केस ही नहीं हुए, बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स। तो 2 जगह से आप कभी नहीं निकल सकते। कहाँ से? एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक कोर्ट। Is it clear? That's actually true. That's what it happens. So, trying criminal cases against MP and MLAs must be ordered. Adoption of virtual court facilities needs to be improved. Virtual courts क्या है? You are saying कि जैसे अभी कोरोना में चल रहे थे, let it work like that. नहीं आ सकता तो भाई वहां से दे दे पेशी। अब वो यही बोलते हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, तो मर्जी बैठ के दे दे तो। Okay. These measures will allow speedy disposal of cases. 20 साल निकल, सपोज 3 साल निकल गए, जज फिर ट्रांसफर हो गया, अब फिर से नई तरीके से फाइल खुलेगी, उसको जाना फिर से नई स्टार्टिंग, फिर केस स्टार्टिंग से। वो अब वो बोलेगा उसको पता, एग्जैक्टली उसको नहीं पता। फिर से जब तक बंदा मर गया, कुछ हो गया, केस चलेगा। Like I'll just say in general, I'll give an example. So my grandfather's car, one of our drivers had banged my grandfather's car, and he killed a child. He was caught also, everything also. Grandfather is also dead. The cases have come on my father and his brothers. 30 years have passed. Verdict क्या है कि वो तो देना उन्होंने है, इंश्योरेंस ने।
क्रिमिनल चार्जेस तो उस पे लगे हैं ड्राइवर पे जो स्काउंडिंग है, पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, that's altogether different. Only thing we had to sign, they had to sign after 30 years the insurance papers saying that from the car it had happened, so the insurance has to pay. 30 years. आगे से आगे पहुंच जाएगा केस. अगर थैंकफुली फादर पे नहीं होता तो मेरे पे आ जाता. All my cousins. So that's actually how the courts work. Okay, so you have legit like that. Now, why it's really important, let me give you an example of this. And in 2003 or 2012, 11, this verdict had come according to Section 8 of the RPA Act. What is RPA? Representation of People Act. अब वो कहते थे उस टाइम पे था कि अगर आपने 3 महीने के अंदर, even if you are guilty of the worst of crimes, आपने क्या किया, shall be disqualified for the date of conviction and shall continue disqualification for a period of 6 years of release. पहले क्या होता था, 3 महीने तक आपने अपील फाइल कर दी, कन्विक्शन हुई लोअर कोर्ट में, said you are guilty, 3 महीने के अंदर आपने अपील चली गई कहाँ पे, हाई कोर्ट में, फिर भी इलेक्शन लड़ लो. मैं अभी हाई कोर्ट ने थोड़ी बोला है, सिर्फ लोअर कोर्ट ने बोला है मैं तो गिल्टी हूँ. पहले हो जाता था, अब नहीं होता. अब हाई कोर्ट के बाद सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट, तब तक पूरे उसके टाइम पीरियड ही बाय बाय टाटा खत्म. तब तक वो इलेक्शन भी लड़ता रहेगा, एमपी भी रहेगा, एमएलए भी रहेगा. क्यों, कहाँ तक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में. तो ये चेंज कर दिया था सेक्शन 8, 1 and 2, 3 डिस्क्वालिफाइड. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ओम प्रकाश चौटाला वाज फाउंड गिल्टी. कितने इयर्स मिनिमम, 2. अगर 2 के ऊपर होएगा आप उतने साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और कितने फर्दर पीरियड, 6 साल. तो आपका पूरा पॉलिटिकल करियर 8 साल का 0. एग्जाम्पल, लालू, चारा घोटाला, कन्विक्टेड. एक बार कन्विक्ट हो गया, जितने साल की सजा है प्लस 6 years, उतने साल तक वो इलेक्शन नहीं. तो क्या करते थे, इलेक्शन लड़ी जो, केस क्या, कन्विक्टेड हो गए हो, अब तो हाई कोर्ट में है जी केस. और फेवरेट लाइन, इट इज सब जुडिशियल सो वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट मच ऑन. कोर्ट के अंदर. Is it clear? So that used to be the basic statement, but that's changed. And majority of these cases are prevention of money laundering or paise related. Can I continue further? Lok Sabha clears bill restoring states' right to specify OBC groups. पहले किसके पास होता था, सेंटर के पास. अब किसके पास हो गया, स्टेट के पास. बट सेंटर का कोटा जो है वो कौन सा है, ये आर्टिकल 15(4), 5 and 16(4). 15(4) क्या है, 15(4), 5 क्या है, reservation in terms of education institutions. 16 क्या है, reservation for jobs. ये सब किसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर पास कर दिया. गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपने मराठा कोटा देना है, महाराष्ट्र को राइट दे दिया, यू प्रोवाइड मराठास और ओबीसी, मराठास गेट रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, not in central jobs. It is very much triggered for the elections. Is it clear everybody? कौन सा आर्टिकल है, 15(4), 15(5), 16(4). 15(4), 5 क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. 16(4) क्या है, जॉब्स. Is it clear? सेंटर गवर्नमेंट बोलती है हमारा सेंटर का लॉ है. अभी एक और चीज पे बहुत डिबेट चल रहा है, क्या, कास्ट बेस्ड सेंसस. The government is non-committal on it. कि ऐसी कौन सी कास्ट हैं, लोअर कास्ट में भी, जो हायर राइज कर चुकी हैं. कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो राइज ही नहीं की. How many कास्ट were there generally in OBC list? ये भी बता देता हूँ, 671 in the central list. और इसको कौन प्रिव्यू करता है, प्रेसिडेंट. ओके, कौन से आर्टिकल्स हैं, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 338, 338A और 338B. ये ऑलरेडी आ चुका है 338. 338 किसके लिए है,
SC ST, B क्या हो जाएगा OBC। सिंपल है कि नहीं? क्लियर? ऑलरेडी आ चुका है, गारंटीड इस पे क्वेश्चन आएगा। 342, the amendment article 3, which under president shall notify for socially and economically backward classes in relation to state and union। ये 342 है। अगर जट 6 को ओबीसी में लेके आना है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? 342। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। सेंटर की लिस्ट अलग होगी, स्टेट की। मराठास may not be included in the center list, but they may be included in the state list। every doubts with this or not? स्टेट अपने स्टेट के अंदर किसी को भी जॉब प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है। ऐसी कितनी परसेंट रिजर्वेशन है वैसे? 50%। एक ही स्टेट है जहां पे 50 से ज्यादा है, तमिलनाडु। 68% रिजर्वेशन in terms of state, 68%। is it clear? वैसे कितनी है? 50। कैसे डिवाइडेड है? 15% फॉर 7.5 ओबीसी 22। 10% अभी आपने किसको दिया? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सेंटर के अंदर अभी इस पे भी स्टे है, क्योंकि वही बेंच बैठेगा अभी, फिर वो डिसाइड करेगा, बिकॉज कोरोना आया हुआ तो अभी कुछ नहीं हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? एवरीबडी क्लियर? ओके, व्हाट आर द आर्टिकल्स? लेट मी गो थ्रू इट क्विकली। 338 क्या है? ए बी ओबीसी। 671 ओबीसीज कौन से आर्टिकल में आता है? 15(4), 15(5) एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। 16(4) क्या है? रिजर्वेशन फॉर जॉब। इज इट क्लियर? ये रिजर्वेशन फॉर जॉब्स है, ये है। सो दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस बिल। एंड व्हाई इज इट रिलेटेड? बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? ट्रिब्यूनल का कौन सा आर्टिकल है? ट्रिब्यूनल 323। A is administrative. Is it a constitutional body? No, it's a non-constitutional body. Only thing very interesting, 70 and 50. It's the only one in which a lower age has been added. No post in our country has a lower age. It's the only post in the country which has now a lower age. Okay, ye clear hai? Okay, so who's going to identify OBCs? The state government. But ये important है, the union government's argument is that the intent of the 102nd amendment was only to create a central list, and that would be applied only in central government and its institution. It had nothing to do with the state list. तो मराठा रिजर्वेशन देनी है, दो। महाराष्ट्र में जिसको रिजर्वेशन देनी है दे दो। That's how they can do it. Is it clear or not? But central list is different, state list is different. Sorry? Yes, जो which they identify as OBC। वोट बैंक होने वाला अभी, जिसकी वोट चाहिए उसको पा दो, इसकी वोट चाहिए उसको भी पा देते हैं। It's going to be all like that. Governor's pardon overrides Article 433A. Yeah, again important. A Supreme Court bench considered the feasibility of remission policies in Haryana. What is the pardoning power of the president? Article 72. Under Article 72, there are different provisions. Pardon, completely maaf kar dena. Complete maaf. Commutation, one type of punishment to a less harsh one. Death penalty to solitary confinement, life imprisonment. Reprieve, थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे देना कि अभी फांसी रोक दो। रिप्रीव, फांसी रोकना क्या होता है? रिप्रीव, बिल्कुल माफ कर दिया, पार्डन। एग्जाम्पल पार्डन का वही रुस्तम वाला केस, उसमें कोई नाम नहीं आता, झुंझुन वाला नहीं क्या था, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। He was served prison for 3 years and then he was let off by the president on good behavior, pardoned after 3 years for murder or somebody. Okay. Respite, degree of punishment को रोक देना for
special cases like pregnancy, mental condition. Remission, changing quantum punishment without changing its nature. For example, 20 years reduces to 10 years. Is it clear? Commutation, death penalty से life imprisonment. Respite, medical grounds पे. Reprieve, रोक लगा दिया. And commutation, 20 से 10 साल. Remission, sorry. Sir, यहाँ पे when we talk about let's say 2 years, 20 years, so it is like कि एक दिन को 1 day consider करते हैं, night is also considered as another day. ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ है. ये पता नहीं मेरे को कहाँ से मिथ फैली है. बहुत लोगों को ये लगता है कि रात और दिन 2 दिन होते हैं. Wrong. It's completely 1 day is considered as 1 day. I don't know, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, पर ये मिथ है. ऐसा कुछ नहीं होता. एक दिन ही होता. जेल में एक दिन is not equal to 2 days. 1 day is 1 day only. I don't know where it has come from. Okay. Okay. Similarly, 161 क्या है? गवर्नर का. तो गवर्नर के पास 2 पावर्स नहीं है. कोर्ट मार्शल या फिर डेथ पेनल्टी, पार्डन. डेथ पेनल्टी को पार्डन कर दो. The powers of the governor to lift executive powers of the state, सेंटर के रोल से रिलेटेड नहीं है. And the president can pardon in all cases where sentence is given in the sentence of death. But the pardoning power of the governor does not extend to death sentence. बाकी जगह पे ये pardon कर सकता है. Example, किसी को pardon किया हो. Anyone? An actor was late 1 years earlier. Sanjay Dutt was let 1 years earlier. 1 साल पहले छोड़ दिया गया. Sorry? क्या? मूवी आने के बाद क्यों? He was convicted in the Tata case that he had weapons. That is, everybody knows it. Bullshit for safety. It's bullshit for safety. It is not for killing or whatever. It is based, not gun, but there was also RDX, and so you have so much money, you cannot have guards, but you want to keep a gun for yourself for protection. That's bullshit. That's bullshit. Okay, that's literally bullshit. Whatever he was threatened or whatever he's trying to glorify himself in the movie Sanju, I don't agree to it, because a person like me or you would be keeping bye Tata. तो क्या हमारे पे मूवी क्या उल्टा टेररिस्ट लगा के बाहर निकाल देते. Okay, this is actually true. You don't keep it for that. But when I say in general, so that's a pardoning power that who has it. Except for death penalty, he can do it. Now, there's a pardoning power also happening for one person in Tamil Nadu also. Which person I'm talking? It's a very big debate topic in Tamil Nadu. For what person? Anyone. Karunanidhi is dead. वो क्या करेगा? उसको pardon क्या करेंगे? Any person, can you tell me? One person? Huh? No, she's also out. Can Shashikala fight elections? No. For how many years? 6 more years. Jayalalitha also could not have fought elections. But fortunately, she died. She died, actually. She was convicted for more than 2 years. So 2 + 6 for 8 years, her political career was over. She only could have controlled AIA, DMK. Is it clear? My next question to you is, what I'm asking you is, which person, very important, it's a part of the Tamil politics which is happening, for Dravidian movement. The people who are responsible for killing of a former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. Their death penalty was pardoned by the president to, or was commuted from death penalty to life imprisonment. They served their time period. Now they say, not Sri Lankans, those are Tamilians. Okay. Sorry,
Yes. So when I not them, they had died. The people who were also responsible in making that plan. प्लान का जो प्लान में इन्वॉल्व थे उनका डेथ पेनल्टी से क्या चेंज किया, लाइफ। अब गवर्नर के पास है कि उनको छोड़ दिया जाए। ऐसे क्लियर? उससे ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लियर है कि नहीं? अब सेक्शन 433A of the Code of Criminal Procedure क्या कहता है? The Supreme Court has held the governor of a state can pardon a prisoners, including those on death row, even before they have served a minimum period of 14 years. जो डेथ रो पे है, अगर 14 साल वो सर्व करता है, उसके बाद होता था। अब 14 साल से पहले आप उसे छोड़ सकते हो। Why? अभी ये काफी चल रहा है। राजीव गांधी किलर्स के 14 years ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 something हो चुके हैं। So there have been talks about releasing them. Mandates that a prisoner can be remitted only after 14 years of jail. उसको उन्होंने बोला 14 से पहले भी कर सकते। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने। Is it clear or not? Even डेथ पेनल्टी हो, उसको पार्डन कौन कर सकता है? गवर्नर। जेल की सजा कौन खत्म कर सकता है? गवर्नर या प्रेसिडेंट। डेथ पेनल्टी तक में, बिकॉज डेथ पेनल्टी माफ नहीं करेगा। 14 साल हो गए, डेथ पेनल्टी हुई, प्रेसिडेंट ने माफ कर दी, छोड़ दिया। अब 14 साल तो उसने बोला जेल में रहेगा वो। डेथ पेनल्टी वाले केस को मिनिमम कितना टाइम चाहिए? 14। ये बोला गया 14 के बाद माफ करेगा। तो वो कहते प्रेसिडेंट गवर्नर की पावर है, 14 से पहले भी कर सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? कैन आई कंटिन्यू फर्दर? ओके। कितने शेड्यूल हैं भारत के संविधान में? एनीवन? 12 शेड्यूल। 12 schedules. How many schedules are there? 12 schedules. 12. Now, why I'm going to do this is because there is a special provision. And how many states are there in these 5th schedule? 10 states. 6th schedule में AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura. Meghalaya is northeastern states. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. AMTM. फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल कौन सा है? Union and its territories. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल क्या है? सैलरी। थर्ड क्या है? Votes. फोर्थ क्या है? एलोकेशन ऑफ इंडियन Lok Sabha seats. नो राज्यसभा। राज्यसभा। ओके, फर्स्ट शेड्यूल यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, नेमिंग ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकंड क्या है आपका? सैलरी। किनकी? कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड। अपनी अपनी सैलरी में सोच लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल सैलरीज। थर्ड, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। कौन इनकी ओथ लेगा? मैं संविधान की शपथ खाता हूं, मैं संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, सो एंड सो। फिर वो बोलते हैं, मन में बोल जाते हैं सब, जो भी बोला मैं झूठ बोलूं। ठीक है, ओके। व्हाट्स माय फोर्थ शेड्यूल? राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल स्पेशल एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज। ये जनरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होता है। सिक्स शेड्यूल क्या है? AMTM, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सिक्स शेड्यूल AMTM स्पेशल प्रोविजन। सेवन शेड्यूल क्या है? कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और कौन सी है? स्टेट लिस्ट। लिस्ट एक संविधान में 3 लिस्ट बनाई हुई है। एक है जो सिर्फ कौन चेंज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक है जो कौन चेंज कर सकता है? स्टेट। एक है जो दोनों, सेंटर और स्टेट। जो मैं बिल बोल रहा था जहां पे ममता बनर्जी भड़की थी, वो किसके रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट। वो ये बोल, एग्रीकल्चर किस में आता है? स्टेट लिस्ट। We took the system of lists from 1935 constitution which was made. So when I talk about it, all these lists were given in 1935 Government of India Act. That is true. But when we talk about the different lists, What is exactly the difference between provincial list and a state list? which list? State list and which list?
provisional list. What am I saying? There used to be we had system of diarchy in the beginning when we had the Britishers. How is that different from now? Now, let me explain to you. First of all, there are going to be 3 or 4 things given in the list. Center list, state list, concurrent list, and residuary list. जो चीज तीनों में नहीं मेंशन वो किस में आएगी? रेजिडरी. और वो किसको पावर जाएगी? सेंटर गवर्नमेंट को. 7th इज द लिस्ट कि भाई ये लॉ पावर किसकी है, ये लॉ पावर किसकी है. So central list is something that only the central government can make. That is the parliament can change. Defense है, state government के ऊपर तो नहीं है. वो बोलते हैं हम अपनी आर्मी बनाएंगे, बिहार आर्मी. ठीक है. पुलिस किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है. सेंटर ये नहीं बोल सकती अपनी, नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही है, दिल्ली पुलिस, और कुछ नहीं. चंडीगढ़ पुलिस भी सेंटर. It's all center. Okay, all UTs की पुलिस किसके अंडर होगी? सेंटर. स्टेट की स्टेट. अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर उसको कोई ठुल्ला नहीं पूछता. क्यों? दिल्ली के अंदर उसके पास पावर ही नहीं है. गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, कांस्टेबल तक नहीं पूछता उसे. सही बात है, because the power is with the central government. Is it clear or not? Fact. But in a state which is your own, the entire power is with you. बहुत इनके टसल्स बहुत होते हैं. वेस्ट बंगाल में तो बहुत अच्छे टसल्स होते हैं. सीबीआई के लोग ठुल्ला ठुल्ले को पकड़ के ले गया. It actually came like that. हिंदी न्यूज़पेपर में यही आया था. So what had happened? The CBI had come down to arrest the DGP, कोलकाता के DGP को इन्वेस्टिगेशन के लिए. कोलकाता के डीजीपी ने अपने लोग पुलिस वाले भेजे, उन्होंने किसको पकड़ लिया? सीबीआई को. सो कोलकाता पुलिस अरेस्टेड द सीबीआई. हाँ, वो पुलिस ने पुलिस को पकड़ लिया. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? इज इट क्लियर और नॉट? सो योर, बट दैट्स अ सेंट्रल थिंग ना. यू हैव टू आस्क, परमिशन लेनी पड़ती है. स्टेट से बिना परमिशन लिए आप आ नहीं सकते. So that is a state list. Center list, everybody clear? NIA in certain cases you have to hand it over. Permission मिलती है आपको. सीधा गवर्नर का, प्रेसिडेंट गवर्नर का सिग्नेचर लेके जाओगे, किसी का लेके जाओगे, ऐसे नहीं. और NIA की ये जब हुआ था ना, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ये पहली बार ग्रिड लॉ का बात चला था जब ताज अटैक्स हुआ है. ताज अटैक्स में जब तक आर्मी आएगी तब तक सबसे परमिशन लेनी पड़ती थी. स्टेट से परमिशन ले रहे हो एग्जैक्टली कि हम डिस्प्यूट, हम भेज दें किसी को. प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जरूर है, पर एक्शन उस स्टेट में अगर लिया जाए जब तक वो वॉर या थ्रेट का सिचुएशन ना हो. एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. पठानकोट अटैक सबको पता है, ठीक है? Pathankot attacks. So the army had cordoned off the area much earlier, but army was not allowed to take action. Punjab police took the action because it is in the hands of the state government. Punjab police वाले कहते हैं हम करेंगे. बहुत अच्छे. How many of you saw them lobbing grenades? How many of you saw Punjab police lobbing grenades? Hold on. Okay. मेरे को दिखाने दो, लॉबिंग ग्रेनेड वाला तो दिखाने दो आपको.
So, पंजाब पुलिस को बाद में अरेस्ट किया था ना। वो तो स्वॉट टीम आई थी, बेचारों के पेट फूट फूले हुए थे, कोई एक बेचारा वो फेंक रहा था, मेरे को वो फोटो नहीं मिल रही। पंजाब पुलिस की थी, हाँ दीनानगर, हाँ दीनानगर ही था। I'll send it to you. It's that guy got a award also. बेचारे के कोई पैंट पकड़ रहा है, कभी grenade lock. Just wanted to show that. So my objective is very clear. Just in general, ये देख लो, ये बेचारों के पास ऐसे था, ऐसे हेलमेट हेलमेट छोड़ो, वो ये जो पीछे वाला था ये ग्रेनेड लॉब कर रहा था, वो देख लो, healthy police officer. Okay, as I said, so that is what it is. Is it clear? अब concurrent list में क्या आता है, अब याद रखो क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने करना है। 8 शेड्यूल क्या है आपका, लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस है, 22। 9 शेड्यूल क्या है, प्रोविजंस नॉट अंडर द जुडिशियल रिव्यू, बट आईसी कहेलो केस के बाद ये क्या आ गया, अंडर जुडिशियल रिव्यू। कौन सा केस है, आईसी कहेलो। 9th के अंदर क्या होता था, संविधान कोई भी लॉ बनाया सब किसके अंदर पा दिया, 9th के अंदर, क्योंकि आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर था ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट कहता नहीं ऐसे नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? 10th नो, 9th शेड्यूल वाज रिलेटेड टू योर लैंड सीलिंग एक्ट। 10th शेड्यूल क्या है आपका, एंटी डिफेक्शन। 11th 12th पंचायती राज कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। एंटी डिफेक्शन, आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी में नहीं जा सकते। इलेक्ट होने के बाद भी जा सकता पार्टी। हरियाणा का मॉडल। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ये बना सिटिंग एमपी था, ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। पर वो कांग्रेस, एक मिनट सुन लो, सुन लो। आई फर्स्ट हैव टू रिजाइन फ्रॉम माई पार्टी। अब उन्होंने क्या किया, एमपी वालों के एमएलए सब ने रिजाइन किया। सपोज 200 स्ट्रेंथ थी, 220 थी, कांग्रेस वाज 115, से फॉर एग्जांपल 30 पीपल रिजाइन, 220 से कितना हो गया, 190। 30 कांग्रेस के रिजाइन कर गए, 115 से स्ट्रेंथ क्या होगी, 85। नाउ हु इज इन मेजॉरिटी, बीजेपी। बट the people who resign from the party cannot be chosen as a minister till the time they win elections from BJP. Yes, पहले नहीं होता था, डायरेक्ट जा सकते थे। एक एग्जांपल दिखाता हूं, इसका टर्म था आयाराम गयाराम, इट्स ऑल्सो नोन एज हॉर्स ट्रेडिंग। बहुत अच्छी स्टोरी है, हरियाणा का लेजिस्लेचर था, इधर से उधर पलटी मारता था, एक दिन उधर से एक दिन इधर मार दिया। ओके, एज स्टैंडर्ड्स, ये कहां पे पॉलिटिकल टर्म दिखाता हूं। ओके, okay, the term originated in 1960s in Haryana, where excessive political horse trading used to take place. Counter house trading took place, triggering several rounds of frequent political deflections by this, resulting in the dissolution of the Haryana Legislative Assembly, and consequently the first elections were held in this. अब उसका नाम क्या था, उसी से बना है आयाराम गयाराम। The term was coined by Gaya Lal, a member of the Legislative Assembly from Huddal in Haryana. Won elections as an independent candidate in 1967 and joined the Indian National Congress, and thereafter changed the party 3 times in a fortnight. 3 बार पार्टी बदलती हफ्ते में।
एक ही रात में, हाँ। कभी साइन कर रहा था पार्टी के लिए, कभी किसी पार्टी के लिए, कभी वो कहता मेरी मेजोरिटी है, वो कहता नहीं मेरी है। क्या होटल? अच्छा, दोनों क्या कर रहे हो? पेलवेल। Okay, first by politically deflecting from the Congress to United Front, then counter deflecting back to किसने लेके आया 10 लाख दे दे, दूसरा लेके आया 20 दे दे, अब वो कहता नहीं नहीं 30 कहता दे दो. So that is what happened. Okay, when Gaya Lal quit the United Front and joined the Congress, the Indian National Congress leader Rao Virender Singh had indicated Gaya Lal deflection to Indian National Congress, brought Gaya Lal to a press conference in Chandigarh and declared Gaya Ram was now Aya Ram. That's how the term came, Gaya Ram, Aya Ram. Okay, the trigger the worst cycling game of political deflections and counter deflections. बहुत सिंपल, कुछ नहीं होता. ये क्या करता, उस टाइम पे क्या होता था, एक ही दिन में पार्टी बदल सकते. उसने बोला मैं तेरे को वो बोलता क्या ऑफर करोगे, तू ले एग्रीकल्चर, ठीक है. दूसरा बंदा आया, क्या चाहिए, वो तो एग्रीकल्चर दे रहा है, ये ले फाइनेंस. फिर दूसरी पार्टी आ गई, कहता क्या चाहिए, कहता वो तो फाइनेंस दे रहा है, ये ले होम मिनिस्ट्री. फिर आया दूसरा, क्या, वो तो होम मिनिस्ट्री, डेप्यूटी सीएम रख ले तू. So that's what used to happen. But now it is not like that. Is it clear? That is what law? Anti-defection. It was changed. Clear? Okay, can I revise the 10 schedules? That's how the term came, Ayaram. Ayaram. Very interesting history behind this. It's known as horse trading. Is it clear? जब कोई पार्टी पावर में नहीं आती, मेजोरिटी में नहीं आती, सबसे ज्यादा पावर किसको मिलती है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. हरियाणा में हमेशा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा पावर मिलती है. एग्जांपल, नहीं सिरसा का कौन सा था, नहीं सिरसा का गोपाल कांडा, उससे बड़ा कौन हो सकता है? गोपाल कांडा. How many of you heard of this name, Gopal Kanda? He was made as a home minister. जूतों की दुकान थी. Now he has an aviation industry. वो air hostess वाला. He committed suicide. He started from a चप्पल का shop. अब तो उस टाइम पे जब हुड्डा गवर्नमेंट थी. Okay, so that is what, because you don't have power, right? So then for power, everybody is willing to give you any seat. So that's what happened. Okay, first schedule kya hai? I'm just saying, if you read Indian politics, is really interesting. Read, like, learn it with interest. It becomes very simple. First schedule, second, third, fourth, fifth, Lok Sabha, Rajya Sabha. Fifth, special schedule area, scheduled tribes. Sixth, AM, TM. Seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, कौन सा कंकरेंट में चेंज कर सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी बिल तमिलनाडु और केरला में सिलेक्शन उन्होंने पास करके उन्होंने नहीं किया. अब कंकरेंट बिल से जो बनाते हैं तो वो नहीं, वो मैंडेट स्टेट को करना पड़ता है. अगर concurrent list is above state list, center list is above concurrent list, center list is also about the, सबसे ऊपर कौन सी होगी? सेंटर का लॉ सबसे ऊपर. ओके, क्लियर है कि नहीं? अब फिर शेड्यूल में क्या था, कितनी स्टेट्स है सबसे इंपॉर्टेंट? 10 स्टेट्स है. कितनी स्टेट्स है? 10. Article 244 of the Indian Constitution, scheduled areas means the areas president may order declared as scheduled area. 244(2) क्या था? OBC. शेड्यूल एरिया का क्राइटेरिया क्या है? पहले से ही ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, compactness as reasonable size of the area, underdeveloped nature of the area, and marked disparity in economic standards of the people. कितनी स्टेट्स में है?
10 शेड्यूल पहले से ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकंड, एरिया कम होना चाहिए वहां पे डेवलपमेंट। One of the reasons why Andhra and Telangana got divided, Telangana people said we are not getting developed. Andhra is the one making all development. So that is also the reason why Andhra and Telangana got divided. Is it clear? Andhra and Telangana were not one state, they were two states initially. It was by gentleman's agreement, it was made as one state, saying that if Telangana does not develop, Andhra will divide from Telangana. That is why the government had to agree. Clear or not? Next, special provisions for fifth. The governor of each state having scheduled areas shall annually, whenever so required by the president, make a report to the president. हर साल report देनी पड़ेगी governor को. The union government shall have executive power to give directions to the state to administration of scheduled areas. The constitution provides for establishment of tribal advisory council. कि उस एरिया में कोई जाना चाहिए कि नहीं, बंद भी कर सकते हैं. Your right to freedom of movement is not there allowed in tribal areas. You know this? Scheduled tribal areas में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है green में, that the tribal area limit has started. You are going at your own risk. The Constitution of India does not apply, or the government of India has no provision out here. तो आप मर गए. There are certain areas where it is actually written like that. नागालैंड वगैरह में. So there's a special list. आप अपने उस पे जा रहे हो, रिस्ट पे, बच के नहीं बचे. The tribal would consist of not. There are more provisions available than Jammu and Kashmir. We talk more about Jammu and Kashmir. We don't talk more about Nagaland because it does not come in mainstream media. But Nagaland, generally, they bother loads. Yes. So there are a lot of autonomous hill tribe people who are fighting amongst each other. Naga councils. So, पर इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट रिपोर्ट देगी, ट्राइबल काउंसिल बन जाता है, तो स्पेशल प्रोविजन मिल जाती है कि उसी जगह से लोग एमपी सिलेक्ट होंगे. क्लियर है कि नहीं है? States having scheduled area, the tribal advisory council should not be more than 20 members, of whom 3/4 shall be represented in the scheduled tribes of the legislative assembly. The governor may direct any particular act of parliament जो उस area में नहीं लगेगा. Prohibited or restrict the transfer of land amongst members of the scheduled tribes in such areas. And also tribal area में सबसे problem क्या होती थी बड़ी? कौन आते थे अंग्रेजों के टाइम पे? मनी लैंडर्स को भी आप रोक सकते हो. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये स्पेशल पावर्स मिलती है किसके अंदर? फिफ्थ शेड्यूल. पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्यों है इंपॉर्टेंट? जितनी भी करप्शन है कौन चेक करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी. सुन लो, इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स लोकसभा के, 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के. इसका जो चेयरमैन है वो होता है ऑपोजिशन का लीडर. इसको रिपोर्ट कौन देता है? सीएजी. ये हर एक पॉइंट चेक करेगा कि भारत सरकार ने जो पैसा खर्चा किया है या करप्शन हुई है, किसको पता लगता है? पब्लिक अकाउंट. सीएजी की हर रिपोर्ट इसके पास जाएगी. सीएजी क्या करता है? ऑडिटिंग. अगर 20 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम तो प्लेन की कॉस्ट नहीं बताएंगे, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही थी या गलत थी? गलत. क्यों? हर एक कॉस्ट तो सीएजी अप्रूव करेगा, सीएजी बताएगा भी. सीएजी की रिपोर्ट किसको जाएगी? पब्लिक अकाउंट को. और उनको तो पता ही लगेगा. इतने देर बोलते रहे हम नहीं बताते, हम नहीं बताएंगे. ये देखिए आता था, द स्पोक्स पर्सन यूज्ड टू कम. ये बॉटल है, अब इसके अंदर पानी कौन सा है, तभी इसकी कॉस्ट है. अगर पानी की कॉस्ट बता देंगे तो सबको पता लग जाएगा हम क्या वेपन लगा रहे हैं. घंटा. अब ऐसे ही सबको पता है कौन सा है. एट द एंड ऑफ द डे सब पैसा किसको जाना है? आप पैसा कहाँ से लेते हो? पब्लिक अकाउंट से, है ना? पब्लिक अकाउंट की ऑडिटिंग कौन करेगा? सीएजी. और कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? पीएसी को देगा, और पीएसी चेक करेगा. अब हर किसी को पता है कॉस्ट ऑफ प्लेन क्या है. इतने साल ड्रामा चलता रहा, हम नहीं बताते.
अब सबको पता ही है उसका रीजन क्या है, किसके पास आया? टू 2018। तो वो अग्रीमेंट जब हुआ है, अग्रीमेंट की कुछ कॉस्टिंग हुई होगी, गवर्नमेंट कहती हम नहीं बताते, पर वो तो निकलना ही था। सीएजी ने बोला 2% चीपर पड़ेगा, सीएजी की रिपोर्ट आई है। ऑल आई एम सेइंग इज, अगर आपको पता होता तो आप इस प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हो। Yes or no? So if you know the constitution pretty well, you know how to work about it. Is it clear or not? Okay. कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स में? 22। इसका चेयरमैन कौन होएगा? ऑपोजिशन लीडर। कौन चूज करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द और रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू क्या है? अकॉर्डिंग टू जितने मेंबर्स हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जैसे बीजेपी हैज 50% मेंबर्स इन लोकसभा, तो 50, ये 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। 7.5 मेंबर्स किसके होंगे? बीजेपी के। पर ऑपोजिशन का हेड लीडर ही क्या बनेगा? चेयरमैन। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स व्हाट इट मींस। कितने मेंबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट, और हर रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट की, सीएजी की जितनी भी रिपोर्ट्स है किसके हो जाएंगी? पब्लिक अकाउंट। इंडिया में इतने अच्छे चेक्स एंड बैलेंस लगाए ना हमने पार्लियामेंट के अंदर, एक्चुअल में तो कोई भी पैसा हो खर्चा जाएगा वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि डिस्कशन ही नहीं होता पार्लियामेंट में। ये पूरा सेशन क्या था? लड़ाई करते हुए निकल गया। गवर्नमेंट ने क्या किया? लास्ट डे पे बिल लेके आएंगे, वोटिंग वोटिंग वोटिंग, खत्म। अब आपको यही नहीं पता लगा किस चीज पे वोटिंग हुई है ना, आपने उस चीज पे डिस्कशन किया। क्लियर है कि नहीं? बट दिस इज द वे इट वर्क्स। एंड दिस रिपोर्ट विच द गवर्नमेंट सेज कि मेरे को 20 लाख करोड़ चाहिए सिर्फ रोड बनाने के लिए, सीएजी बताएगा कि 20 लाख करोड़ लगा भी है कि नहीं लगा। बिल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो सारे ऑडिटिंग करता है सीएजी। इतना पैसा था, ये इस चीज पे गया, ये आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम कैसे पता लगा? सीएजी रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा 200-300 रुपए के आपने टॉयलेट पेपर लिए, 300 रुपए के टॉयलेट पेपर पता नहीं कौन से लिए थे। 1 लाख रुपीज में ट्रेडमिल ली है, वो भी रेंट पे। 1 लाख रुपए की क्या ली है? रेंट पे ट्रेडमिल। तो वो सब रिपोर्ट्स लिख ली है ना? हाँ नहीं नहीं, वो हम रेंट पे लेके आए। चेयर्स की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड कॉस्ट थे। सो हाउ डू वी गेट टू नो? ऑडिटिंग तो होगी, दिखाना तो पड़ेगा ही कहाँ पे पैसा लगाया है। एंड हु विल गेट टू नो? कैग विल गिव इट्स रिपोर्ट टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो हमने चेक्स एंड बैलेंस तो लगाए थे, पर ऊपर वाले जब ठीक ही नहीं है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। चेक्स एंड बैलेंस बहुत अच्छा है पार्लियामेंट में, बहुत अच्छा है। एज एन ऑपोजिशन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अगर आप एमपी हो, यू वांट टू टॉक अबाउट बुलेट ट्रेन, कब आनी थी, कितने साल हो चुके हैं कि बुलेट ट्रेन का क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंची है। सो यू गेट टू नो एन आइडिया ना। ओनली अ पार्लियामेंटेरियन कैन आस्क, not any random person. Is it clear or not? So checks and balances है। आगे करते हैं। Adjournment signed in। मैंने लड़ाई हो रही थी, adjournment किसने किया? बोथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। उन्होंने बोला भाई बस पार्लियामेंट में जितनी डिस्कशन होनी थी हो गई, खत्म, बाय बाय टाटा। 2 दिन पहले पैकअप कर दिया। सेशन खत्म करना हो तो क्या बोलते हैं? adjournment signed in। कितने सेशन होते हैं हमारे पास? 2। कौन बोल रहा है 2 सेशन? नहीं, कौन 2 बोल रहा था? किसी ने तो बोला 2। मिनिमम 2 नहीं, मिनिमम होने चाहिए 2 सेशन। 1 साल में कितने सेशन होने चाहिए? 6 महीने में 1 सेशन होना चाहिए। 1 सेशन, 2 होंगे। कितने सेशंस होते हैं? 3। कौन से 3 होते हैं? सबसे पहले कौन सा आएगा? बजट। उसके बाद आएगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा होता है?
विंटर। अब एक सर्टेन डेज दिए जाते हैं कि हम पार्लियामेंट खोल रहे हैं 60 दिन के लिए, सपोज रोज लड़ाई हो रही थी, कोई आ जाता है कुर्ते फाड़ने लग जाता है, कोई वेल में आ जाता है बैठ जाता है, कोई स्पीकर को बोलने लग जाता है, कोई कुछ बोलने लग जाता है, हाँ? कोई फार्म के बिल फाड़ देता है, कोई बोलता है ये चोर वो चोर ये सब, तो वो स्पीकर कहता है भाई बहुत देर होगी, हम 2 दिन पहले ही खत्म कर रहे हैं सेशन को, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइड टाइम। सपोज लड़ाई हो रही है, स्पीकर क्या बोलेगा, एडजर्न, 2 घंटे बाद मिलते हैं, थोड़ा सा चाय चू पी के आओ, कॉफी कॉफी पी के आओ, ठंडा हो के आओ, कोल्ड ड्रिंक पी के आओ, ठीक है, लड़ेंगे बाद में, 2 घंटे थोड़ा सा एनर्जी चार्ज अप हो गया। सो ही कैन डू इट फॉर मिनट्स, आवर्स और डेज, वो एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट साइन टाइम का मतलब है सेशन ही खत्म कर देना। दोनों कौन करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन करेगा, द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज डिसाइड विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। स्पीकर किसका होता है, राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन, जो कि कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। इसे क्लियर है ना। एडजर्नमेंट क्या होता है, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट छुट्टी करके आ जाओ, ब्रेक ले आ जाओ, खाना बहुत महंगा है प्लीज खाना खा के आओ। कितना, आई थिंक सो 35 रुपीज, नहीं महंगा है, बहुत महंगा है। You get to see everything. Everything is given on the website. ये देख लो, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट रेट बता देता हूँ। एक्सपेंसिव है काफी। दाल असॉर्टेड 2 रुपए, फ्रूट सैलेड विद क्रीम, और ये सारी चीज मिलती होंगी। और क्या, दही 3 रुपए में। पराठा 3 रुपए। समोसा कितने का सर, समोसा 8 रुपए का। समोसा तो ठीक है, महंगा है, यहाँ पे 10 का तो ही मिलता है। पोहा 100 ग्राम 4 रुपए, पिज्जा 20 रुपए। अच्छी जगह। Okay, I'm just saying. Okay, so कहते हैं जाओ पार्टी करके आ जाओ। Everything is available on the internet. How many on the Lok Sabha website, Rajya Sabha website, privileges they enjoy, everything is given. उन्होंने हाइड कौन सा किया हुआ है? Everything is given, literally. उसके लिए है ना, एमपीस के लिए है, बट वहां से जो अगर सेशन देखने के लिए जाते हैं उसके लिए तो जाने लगेगा, नहीं उतना ही लगेगा ऐसे। सेशन देखने के लिए आपको एमपी को, एक एमपी को इनवाइट करना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना। yes okay, I'm just saying, like, see, it is, all I'm saying is this is a privilege you enjoy. Nobody talks about it, they keep quiet about it. The cost of inflation is only for the poor, not for the rich. And it is all given on the websites. I'm saying Lok Sabha website dekho, Rajya Sabha website dekho. There's also a special, you might not even know it. I am allowed 24 free rides of plane as an MP, and that to business class, which is going to be paid by the government of India. That itna to chalo chalta hai, perfect hai. Okay, 24 business class. Suppose the ticket is of 1 lakh. I get 25,000 extra for traveling in business class. I don't know why. अगर 1 लाख की टिकट है, 25,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा बिजनेस, बिकॉज मैं बिजनेस क्लास में आया हूँ, थकाऊंगा।
1/4, 25% of the ticket you get. Extra milta hai. Traveling in train, class 1, all free. All free, unlimited. क्या हुआ यार? वही तो बोल रहा हूँ, ट्रैवल इज क्लास 1 फैमिली के साथ, 24 विद स्पाउस होता है ये. ओके नेक्स्ट. ओके लेट्स कंटिन्यू फर्दर. मैं बोल रहा हूँ गलत प्रोफेशन में आ रहे हो, एमपी बनो. Okay, let's continue further. So nobody talks about it, but that's the real fact. That's the privileges you enjoy. सेशन देखने का प्रोसीजर है, आपको एमपी को इनवाइट, किसी एमपी को आपको इनवाइट करना पड़ेगा. वो छापेगा, वो देगा, फिर आप जाके देखना. सॉरी, इनवाइट करेगा, फिर यू ऑल्सो. अभी आपको दिखा देता हूँ न्यू. अभी इनको नए घर बन चुके हैं. फ्लैट है ये, फ्लैट नहीं है ये, एमपी का घर है जो इनको ये फ्लैट बोलते हैं. हाँ तो फ्लैट थोड़ी है. नहीं, हर एमपी को मिला है फ्लैट फॉर एमपीज. मंत्रियों की कोठी तो 4-4 कनाल, 8-8 कनाल की होती है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बंगलोज होते हैं वो तो. पहले कहाँ होता था, दे यूज्ड टू गेट टू स्टे इन. अब कोई भी जब पार्लियामेंट लगता है तो यू गेट टू स्टे इन एनी प्लेस, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी. तो जनरली क्या होता था, अशोका होटल वगैरह, वहां पे इनको मिलते थे ये सब. और सब पे करेगा कौन? आप पे करोगे टैक्स के. स्टेट वाइज वो होते हैं एमएलए के. ये तो वो है, ये तो फ्लैट जो ये इनको ये फ्लैट बोल रहे हैं, ये वो है, कोठियों को फ्लैट बोली जा रहे हैं. फ्लैट नहीं, यही है, यही तो बोल रहा हूँ, ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स है नॉर्थ एवेन्यू. ये होते हैं तुम्हारे उसके मिनिस्टर्स के. ये तो मिनिस्टर्स के हैं. दैट इज व्हाट यू से मिनिस्टर्स के. लाइटन्स डेली जो पूरा रोड है वहां पे, तो वो कहाँ पे, इतने में थोड़ी रहेगा. एमपी के लिए अलाउड है. ओके बैक अगेन. ठीक है, अच्छा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. गप्पे जिसको मारनी आती है वो सबसे आगे निकल जाए. Okay, now what is a retrospective tax, और ये क्यों important है retrospective tax कि हमने बोला, और ये अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पास किया, क्योंकि कौन सी ऐसी कंट्री थी और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो चलेगी बाहर ट्रिब्यूनल पे और कहती हम इंडिया से पैसे लेंगे बिकॉज इन्होंने हमारे को फालतू टैक्सेस लगाए. केन्स ऑर्गेनाइजेशन, मस्ट हैव हर्ड इट. ये आर्बिट्रेशन कोर्ट जीत गए फ्रांस में. इंडिया के 1 बिलियन रिसोर्सेज जो भी हैं वो कहते हैं अब सीज कर दिए जाए. क्या हुआ था मैं बताता हूँ, स्टार्ट कैसे हुआ था. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस क्लॉजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 to bring past indirect transfer of Indian assets under the ambit of taxation. जैसे वोडाफोन ने 2007 में परचेज किया 67% stake हचसन का. Keynes had undertaken a corporate reorganization in 2006-07. तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट कहती नहीं उसका भी टैक्स लगाएंगे. तो ये चले गए ट्रिब्यूनल में. ट्रिब्यूनल में ये जीत गया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में. तो गवर्नमेंट कहती है अब 2012 से पहले जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए हुए हैं वो नहीं माने जाएंगे. कि इसका पर्पस क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में हमारे फंस गए हैं प्रॉपर्टीज, वो अब ओपन हो जाए. इज इट क्लियर और नॉट? एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको. The move of Indian government was challenged by the affected companies. Separate international arbitrations where tribunal verdicts in Vodafone and Keynes cases have been ruled against India's retrospective tax. Demands as being in breach of bilateral investment protection agreements.
Keynes Energy was awarded 1.2 billion by an international tribunal, filed cases in at least 10 global jurisdictions, including the US, UK, Canada, and Japan. इंडियन गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज बाहर कंट्रीज में होते हैं, जैसे एयर इंडिया के बहुत रिसोर्सेज हैं बाहर। अब एयर इंडिया में फायदा क्या है, क्योंकि एयर इंडिया में आप इंडियन स्टाफ को लगा सकते हैं बाहर काम करने के लिए। बाकी कंट्रीज, बाकियों में ये नहीं होता, बाकियों में उनका स्टाफ लगेगा, उनकी सैलरीज ज्यादा, इंडियन स्टाफ की सैलरी कम। तो एयर इंडिया के जो होटल्स होते हैं जहाँ पे रहते हैं वो सब सीज करने स्टार्ट कर दिए। तो दे हैव चेंज द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा कंपनीज? केन एनर्जी। इज इट क्लियर और नॉट? 1.2 बिलियन के इंडिया के रिसोर्सेज रोकने स्टार्ट कर दिए सीज फ्रांस में। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, इन्होंने बोला रेपो रेट क्या होता है? जो बैंक, सेंट्रल बैंक लोन देता है दूसरे बैंक्स को, सिर्फ 4% रखा हुआ है। अब इससे क्या होएगा, सपोज मैं आपको बोलूं कार लेने जाना है, आपका आज से इंटरेस्ट रेट 1%, कितने कार लेने की कोशिश करेंगे? एक 10% है अभी, राइट नाउ इट इज 10%। मैं बोलता हूँ कल से 1% हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू टेक अ कार देन? एवरीबडी वुड वांट टू टेक। व्हेन द रेपो रेट इज लो, the money or the liquidity is there in the market. हर कोई खरीदने की कोशिश करेगा, ठीक है? हर कोई खरीदेगा। अब हर कोई खरीदेगा तो क्या होएगा? नहीं सोना। अगर हर कोई खरीदेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि हर किसी की डिमांड है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं बोलूं सेकेंड हैंड कार की मार्केट ही ना हो तो डिमांड नीचे, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड कार्स। During the pandemic, the value of second hand bikes increased because everybody needed a vehicle to travel. That is when the people were spending money and inflation of second hand bikes was increasing. So when the repo rate is low, what happens is automatically the inflation increases. But do people have money? Accommodative monetary policy, also known as a loose credit or easy monetary policy, occurs when central bank attempts to expand the overall money supply to boost the economy when growth is slowing. हमारी growth कम हुई है तो गवर्नमेंट ने बोला, बैंक क्या बोलता है, चलो पैसे लो आप। Government is, or the policy is to give money to people. अब लोगों के पास पैसा आएगा तभी खर्चा करेंगे तभी economy boost होगी. That is what the policy is. RBI has projected 9.5% real growth rate in the present fiscal year. MPC has raised its forecast to retail inflation to 5.7 from the previous 5.1. और MPC Monetary Policy Committee का head कौन है? जयंत वर्मा. What is accommodative monetary policy? कि पैसा मार्केट में बहा दो, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. बट इट ऑल्सो कॉजेज स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन क्या होता है? द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर राइडिंग मच मोर एज कंपेयर टू पीपल्स बाइंग पावर. इनकम 20,000 ही आ रही है, पर दूध महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, यस और नो? तेल महंगा हो गया, बचत कम होगी, and it might lead to stagflation, that is over increase in price of goods without any value of buying. India is a little bit under danger of this stage. Yes or no? सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हो रहा है? अभी तो गरीबों को हो रहा है सबसे ज्यादा. Cooking gas rates have gone up. सब कुछ महंगा हो गया. Is it clear? Okay. Who is this monetary policy under? Jayant Verma. National Mission Edible Oil.
गवर्नमेंट ने क्या किया है इसमें, एडिबल ऑयल क्या है, जो खाने का कुकिंग ऑयल है, हम कहाँ से करते थे, मेजोरिटी एक्सपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट कहती है अब आप एक्सपोर्ट मत करो, अब आप क्या करो, खुद बनाओ, सॉरी इंपोर्ट मत करो, आप खुद बनाओ। India's heavy dependency on edible oil, despite being a major agriculture exporting country, India lacks edible oil. And हम कितना import करते हैं, 55%. Is it clear or not? हमने बोला अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज करने के लिए क्या करेगी, सिंपल सी बात है, लोगों को बोलेगी हम आपको इसका एमएसपी ज्यादा देंगे, एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे किसकी खेती हो सकती है, एडिबल ऑयल क्रॉप्स की। कहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, बारिश चाहिए। इज इट क्लियर? सेल्फ सफिशिएंसी डिपेंडेंस इंपोर्ट 60 to 45 करना है, एंड 70% ग्रोथ इज आवर टारगेट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अभी कहाँ पे है, ये कितने एरियाज में लग रहा है, लेस देन 4 लाख हेक्टर। इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, हम आपको कितना पैसा देंगे, 12 से 29,000 पर हेक्टर। वीट की एमएसपी कितनी इंक्रीज की है, 2% की है, 2%। इंडोनेशिया, मलेशिया 2% इंक्रीज की है। क्यों, लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे वीट ग्रो करने को। इज इट क्लियर? सीधा किसकी एमएसपी बढ़ा दी, और कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किया है, कहाँ पे 2%, कहाँ पे फीट पे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा शुगर केन पे हुआ है, शुगर केन का भी अराउंड 10% ग्रोथ हुआ है एमएसपी। मिनिमम उसमें एमएसपी नहीं लगता, फेयर प्राइस लगता है शुगर केन। एमएसपी की तो 2% ग्रोथ रेट हुई है। पेट्रोल डीजल कितना राइज हुआ, 30%। यू नीड ट्रैक्टर कल्टिवेशन, बिजली इज गॉट एक्सपेंसिव, और एमएसपी कितना, इज इट क्लियर और नॉट? कौन से एरियाज में करेंगे हम, अंडमान, दैट्स ऑल। The center will bear an additional cost of 2% of the crude per oil prices in the state in a bid to encourage northeastern and Andaman, so and so. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कौन सी पॉलिसी है, नेशनल मिशन एडिबल ऑयल, खाने का ऑयल। पाम ऑयल कहां से आता है, 2 कंट्रीज कौन सी है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। क्लियर एवरीबडी? कौन सी 2 स्टेट्स में इनकरेज किया गया, 12,000 से 29, दैट मीन्स 150% प्लस इंक्रीज किया गया एमएसपी। सो पीपल गेट इनकरेज टू ग्रो दिस। इज इट क्लियर? नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, मोस्ट लाइकली चांसेस ऑफ कमिंग। The Union Ministry for Finance and Corporate Affairs has recently launched the National Monetization Policy Pipeline for Ministries and Public Sector Entities. Government क्या कहती है, हमें 6 लाख करोड़ कमाना है, कब तक, नेक्स्ट 4 years में। गवर्नमेंट कहती है कि देखो हमारे पास कुछ रिसोर्स है, और कौन से रिसोर्स बेचने को तैयार है गवर्नमेंट, बेच नहीं रही, गवर्नमेंट लीज पे देगी। Top 5 sector, road, rail, power, oil, gas pipeline, and important ये, सड़क आपके पैसे से बनी, टोल टैक्स भी पे किया कार पे, नहीं पहले तो आपने टैक्स दिया जब आप कार लेने गए, आपने पहले रजिस्ट्री पे टैक्स पे किया जिसपे रोड टैक्स लिखा होता है, आपने बोला भाई रोड के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फिर सरकार कहती है देखो रोड तो बन रही है, तो हम डीजल पे भी टैक्स लगा देते हैं, पेट्रोल पे भी लगा देते हैं, ये हम रोड और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आया गवर्नमेंट कहती है यार देख अगर अच्छी रोड चाहिए तो हम क्या करते हैं, हाईवेज बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, उस पर हम टोल टैक्स लगा देते हैं,
ठीक है, तो तुम्हारे कार्स के आगे क्या लगा होता है? फास्टैग। अब सीधा इस पे कटिंग हो जाएगी। अब सब कुछ बन गया, 5 साल में वो रिसोर्स क्रिएट हो गया। गवर्नमेंट कहती है ये रिसोर्स तो अब बन ही चुका है, अब हम क्या करते हैं, ये रिसोर्स किसी और को दे देते हैं, उससे हम पैसा कमा लेंगे। ठीक है, अब वो आदमी आपको कितना चार्ज करेगा इस पे कोई गारंटी नहीं। आप ही के पैसे से रिसोर्स बना, अब आप फिर से उस पे पैसा देने वाले हो। I remember once there was a saying, they used to say it, that once you're paying the toll taxes, after certain years the toll will be free because the road will be paid for. अब गवर्नमेंट कहती है छोड़ो छोड़ो, ये आगे किसी को दे देते हैं। हमने कितना बनाना है? 6 लाख करोड़। ओके ना, इसमें कई चीजें मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, जैसे कि ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कहते कुछ हो ही नहीं रहा, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, जो वो करना चाहेंगे कर लेंगे। टेंट लगा के शादियां करानी है, शादियां करा लो, जो कराना है करा लो, बिकॉज देन द रिसोर्सेज देयर्स। Is it clear? So it also requires for stadiums. Brownfield क्या है? सबसे important तो ये वाले terms आते हैं जो government use करते हैं। Envisages to serve as a medium-term roadmap for identify potential monetization ready projects across various infrastructures, including roads, ports, and source. Under the plan, private firms can invest in projects for a fixed term using the InvIT route, as well as operate and develop the assets for a certain period. Some assets such as warehouses and stadiums can also be given on long-term lease for operation. There'll be no transfership of ownership. The program will also include brownfield assets, ये important है, which is either languishing or has not been fully monetized. हमने कोई एयरपोर्ट बना दिया और उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहां पे ये एसेट एक्चुअल में काम करेगा, because then the private will put money. It will expect more things to come in. Is it clear? But there is no guarantee कि आपको टैक्स और नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अभी कोई पॉलिसी नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि हम तो 6 लाख करोड़ कमा रहे हैं। सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट होएगा आज तक नहीं पता लगा। अभी ये मॉन्यूमेंट्स भी दिया है, फर्स्ट रेड फोर्ट, हाँ वो तो प्रॉफिट उसका है, he's already paid government some premium. The maintenance cost, everything is his. So he might say that maintenance cost has increased, so I'll charge more money from the visitors coming to. So that is where the government has not been able to declare its policy. What is it going to affect the citizens? How much more money is going to be paid by you? The road was there, I agree. You paid the money for it. Of course, it's not come by itself. The government had to take taxes. The government of taxes made the road. It's also the purpose of doing this is government wants to run its, what has happened, the government has been able to not able to offshore its, government का जो budget है वो काफी offshoot कर चुका है। Targeted था 51%, 68% offshoot हो चुका है of GDP। 17% एक्स्ट्रा गया है जो जीडीपी से है। सो गवर्नमेंट हैड टू टेक लोन्स। अब गवर्नमेंट कहती है पैसे कैसे आएंगे, ये चीज क्लियर हो ना? ओके, कौन से सेक्टर्स हैं फिर से बताओ? 5 सेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट। बिल
Oh, let me go here, back again. Let me go here. Draft Electricity Amendment Bill. As I was saying, I want to discuss this. So as I said, where does we have the concurrent list? कौन सी शेड्यूल में आता है? अब गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारी डिस्कॉम्स है, जैसे कि हम पावर, एक प्राइवेट प्लेयर है जो बिजली बना रहा है, वो देता है गवर्नमेंट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर। ये गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर बिजली सबको देता है, ये सर। पर गवर्नमेंट बोल रही है हमें कितना लॉस हो चुका है, 90,000 करोड़। डिस्कॉम क्या है? द वन हु इज सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी आगे, ये सर। गवर्नमेंट बोलती है हम डिस्कॉम्स को क्या करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। उदय स्कीम लगाई थी, उसके थ्रू भी नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करना चाहते हैं? Broad objective of this legislature is to ensure consumer-centric, promoting ease of doing business, enhance sustainability of power sector and promote green power. कितनी परसेंटेज आपको ग्रीन पावर लेनी पड़ेगी एक डिस्कॉम को? नहीं तो उस पे फाइन है। कितना है? Anyone? Around 20% you have to take as green power. Is it clear? कितना? Akhilesh, microphone off. कितना परसेंटेज है? 20%। अब प्राइवेट करेंगे, गवर्नमेंट बोलता है कि बाकी ऑपोजिशंस क्यों इसको बात कर रहे हैं? पहले वो बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट में है, कहते हैं सेकंड चीज है। ओके, सेकंड चीज क्या है कि आप क्या करते हो, आप बिजली देते हो, प्राइवेट जो डिस्कॉम है किसके पास जाएगा? प्राइवेट डिस्कॉम तो उस एरिया के पास जाएगा ना जो बिजली के पैसे दे सकता है। क्या वो गरीब एरिया में जाएगा? कहते ये डिस्प्यूट चल रहे थे जो पार्लियामेंट में बात हुई है। सेकंड चीज है, अब प्राइवेट प्लेयर है, वो लॉसेस में तो नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? बिजली के रेट उठाना शुरू कर देगा। एट द एंड who's going to get affected? Consumer. So that was the opposition, that is what they were raising the demand. Is it clear or not? 2004 I think so 11 में पहली बार प्राइवेटाइजेशन किया गया था। किसके टाइम पे? कांग्रेस के टाइम पे। उन्होंने बोला सब प्राइवेट प्लांट्स को क्या कर दो, प्राइवेटाइज, एफिशिएंसी आएगी, बिजली बनेगी। बिजली बनी पर रेट 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। दिल्ली में क्या बिजली फ्री है? यू आर पेइंग सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है गवर्नमेंट आप ही से टैक्स का पैसा ले रही है, उधर फेंक रही है। बिजली वाला तो अपने रेट पे बना रहा है, वो तो ये थोड़ी है कि फ्री में आ रही है। यार जो प्राइवेट बना रहा है बिजली, वो तो गवर्नमेंट को बेच रहा है, डिस्कॉम को बेच रहा है ना। डिस्कॉम को तो पे करना ही है उस बंदे को वापस। अगर डिस्कॉम इससे पैसा नहीं लेगी तो डिस्कॉम कहाँ से लेगी? सरकार दे रही है पैसा। सरकार कैसे दे रही है पैसा? आप ही से टैक्स लेके। ये तो कुछ चीज नहीं है। अभी भी तो दे तो रही है ना पैसा बिजली वालों को, तो वो तो देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। इज इट क्लियर और नॉट? ये वाला बिल क्लियर है। और इसका रीजन क्या था? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट बीइंग इन प्रॉब्लम? कौन सी अमेंडमेंट में आता है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी 7th शेड्यूल में आता है। क्योंकि बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंकरेंट लिस्ट, और तभी सेंटर रूल बना रही है। ओके, स्टेट भी अपना बना सकती है पर सेंटर का रूल ऊपर रहेगा। Center's rule will be above the state's rule.
जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल ही नहीं बनाया। गवर्नमेंट ने तो बोला प्रोक्योरमेंट का रूल बनाया, सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस का रूल बनाया, ट्रेड एंड कॉमर्स का रूल बनाया। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि आप प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हो। और एक और बिल कौन सा होता है आपका? नहीं, जो फार्म बिल में एक और बिल तो है आपका स्टोरेज, एसेंशियल कमोडिटी, वो भी कंकरेंट लिस्ट में है, उस पर भी सेंटर बना सकती है। स्टेट बोले ना बोले, एफसीआई किसके अंडर आता है? किसके अंडर है? सेंटर। स्टेट का तो है ही नहीं, किसी को गोदाम दे दे, तुमने जो करना करो, स्टेट क्या कर लेगी? वो सेंटर एंड स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट भी तो अपने हॉस्पिटल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, कंकरेंट है। एग्रीकल्चर इज ओनली स्टेट। जो आप रजिस्ट्री कराते हो घर की, वो किसका होता है? स्टेट। अब सेंटर को पैसा नहीं जाता। Yes or no? So when I say like this, okay. Roadmap scheme. अब इसमें क्या है कि हमने किसको बूस्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्टर्स को। तो एक्सपोर्टर्स को टैक्स होता था, है ना? कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने एक्सपोर्टर को दिया, उसमें टैक्स लग गया। जब वो आगे बेचेगा तो वो गुड क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्टर का खुद तो पैसे नहीं लगाएगा। कोई 30 रुपए की चीज थी, 10 रुपए टैक्स लग गया, कितना हो गया? 40 का। अब एक्सपोर्टर 40 रुपए का ही बेचेगा। अब इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगे हो जाते हैं, और इससे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? कम। तो गवर्नमेंट कहती जो ये टैक्स है, ये हम एक्सपोर्टर्स को क्या करेंगे? सबसाइड कर देंगे। 2024 तक ये किया गया। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो हमारे गुड्स की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम, और इससे बूस्टिंग क्या होगी? एक्सपोर्ट्स। क्लियर है कि नहीं? प्रोडक्ट टैक्स। रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट कोल प्लांट्स। इंडिया ने ये बोला है कि क्या 25 साल से पुराने प्लांट्स को खत्म किया जाए कि नहीं किया जाए, कोल प्लांट्स को। वो जो फायदे में बोलते हैं वो बोलते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पर एफिशिएंसी कितनी आ रही है? सिर्फ 1 और 2%। तोड़ के वापस बनाने में कॉस्टिंग ज्यादा। एक और रीजन क्या है ये कोल प्लांट्स को रिविजिट करने का? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस। क्या अगर हम इन पे फिल्टर लगाएं, ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगा, बट फिल्टर कॉस्टिंग नए प्लांट से महंगा पड़ता है, नया प्लांट लगाना सस्ता पड़ता है। तो ये एडवांटेज है। ये अभी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं डिसाइड किया, बस इस पे बात चल रही है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल inclusion index. The RBI has announced the formation of the Composite Financial Inclusion Index. इसमें पढ़ने की क्या चीज है? Financial Inclusion Index किसने बनाया है? RBI. The Reserve Bank of India has recently announced the formation of the Composite Financial Inclusion Index. What is this Financial Inclusion Index? Would help capture the extent of financial inclusion across the country. The FI index has conceptualized as a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal, as well as the pension sector in consultation with government and respective sectoral regulators. अब इसमें क्या है? फैक्टर्स कहां से है? 0 से लेके 100। किसने बनाया? RBI। 0 का मतलब क्या है? कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको जरूरत ही नहीं है। 100% का मतलब क्या है? कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। 3 फैक्टर्स पे है। एक्सेस, कितने लोगों के पास एक्सेस है उस चीज की। पोस्ट ऑफिस में कितने लोग जा सकते हैं, कितना यूजेज हो रहा है और कितना क्वालिटी। तो सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा रहेगा जो सबसे ज्यादा 100 तरफ आएगा? यस और नो? पोस्ट ऑफिस में होता है ना बचत योजना, ग्रामीण क्षेत्र में या फिर गांव के एरियाज में स्पेशली सबसे ज्यादा बैंक से ज्यादा क्या चलता है? पोस्ट ऑफिस। इज इट क्लियर?
A unique feature of this index is the quality parameters, which captures the quality aspect of financial inclusion as reflected by financial literacy, consumer protection, and inequalities, deficiency in services. The FI index has been constructed without any base year and such reflects cumulative efforts. FI किसने launch किया? RBI. तीन parameters कौन से हैं? Access 35%. Second, usage. Third, quality. As I said, सबसे ज़्यादा access किसके पास है? Post banks, post offices. It's actually true. Post offices also offer you the maximum interest rate. कौन सी योजना होती है उनके पोस्ट ऑफिस में? Anyone? और सुकन्या समृद्धि और एक और होता है पेंशन स्कीम्स हैं इनकी और MIS मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम 5 ईयर के जो इनके वो होते हैं FDs they actually offer the most. Is it clear? Next, इलेक्ट्रिसिटी कर लिया. इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर. ये किसने बोला? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसका मेन रीजन क्या हो सकता है कि मेजॉरिटी द यूरोपियन इकोनॉमीज आर डूइंग बेटर एज कंपेयर टू अस और द अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग बेटर टू अस. क्या है? सबसे पहले तो वैक्सीन है. जिसके पास वैक्सीन आई थी वो ओपन होनी स्टार्ट होगी. अभी तो शुक्र करो वी आर इंडिया, वी हैव अ लॉट ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी. श्रीलंका जैसा हाल नहीं है. श्रीलंका में वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, इकोनॉमी नहीं ओपन अप हो रही थी. whereas US, Europe has been able to open the economy. Can you give me what is example of green visa? Sir, European countries have opened up the Schengen visa. So Yes. for the COVID vaccinated people. क्या हो गया? हाँ. अगर 14 दिन, there's some issues. The most of the flights are actually going from Kerala. Kerala has been affected the maximum. That's why they've diverted it out. Look at the number of cases in Kerala, 36,000. That's approximately 80% of the entire India. And majority of the flights going to Saudi are from Kerala only. There are certain policies which they have to follow. वहां से यहाँ से बहुत कम फ्लाइट जाती हैं सऊदी नॉर्थ साइड. वही चीज है कि तो उन्होंने भी पैसे कमाने हैं. ओके, नीपा वायरस भी आ गया केरला में. तो क्या क्या वायरस लेके आ जाएगा नेक्स्ट? और कौन सा वायरस लेके आ जाएगा? नीपा. हाँ, और कितने वायरस लेके आ जाएगा? ओके, अब बताता हूँ कि क्या है. द इंडियन मॉनेटरी फंड लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक Indian Monetary Fund latest update of the World Economic Fund outlook has projected a global economic expansion of around 6%. इसका main reason है widened variety of global recovery process in the aftermath of the pandemic. अभी हमारा कौन सा वापस स्टेज आ गया? एंडेमिक स्टेज आ चुका है. चंडीगढ़ में तो पूरे ट्राई सिटी में 10 केस आ रहे. कब से? भाई 2 महीने से. केरला से तो पता नहीं, पूछो मत. कर क्या रहे हैं वहां पे? ऐसा क्या हो क्या रहा है? हाँ, तरक्की ऐसी कौन सी तरक्की? Okay. While the forecast for advanced economies has been revised upwards, prospect of emerging and developing economies, particularly those in Asia, are projected to experience slower recoveries. Developing में इंडिया की ग्रोथ सबसे लोएस्ट दिखाई गई है.
The primary reason for this divergence seems to be the difference in vaccine access and the pace of vaccination coverage and ability of the countries to provide for additional fiscal support. This is where the European countries have been able to do it much better, and US and Canada. What is fiscal support? इन्होंने क्या किया? इन्होंने checks issue कर दिए अपने citizens को. All the European countries, as well as US and Canada, issued checks to their citizens. So what does it mean? That each citizen got some money from the government of India. Now, each person has some money to spend. As soon as they spend, automatically the liquidity starts. India क्या बोलता है? Loan लो, loan ले लो. Is it clear? क्या हुआ? हाँ. There has been a huge difference. Is it clear or not? Fiscal support समझ आ गया? अब हमारे पास resources ही नहीं है physical support करने के. कहीं हम अपना पैसा छाप दें तो फिर हमारी इकोनॉमी गिर जाए. यूएस ने ऐसे नहीं है, यूएस ने कुछ किया है. यूएस कनाडा ने पैसा छापा है. What it means, more loan to the people बाद में. But what they've done is actually they say that okay, we'll recover. We've been not able to do that. Second reason कि ये जो countries are developing पीछे क्यों? वैक्सीन ही नहीं है. जब वैक्सीन नहीं है तो ओपन कर ही नहीं सकते. Is it clear? According to IMF estimates, overall 40% of the population in advanced economics have been fully vaccinated as compared to just 11% in emerging. The Indian economy has exhibited one of the poorest performance amongst the emerging economies. Did I tell you that or not? 6% growth rate बोला है. Indian economy contracted by 7% during the 2021 period. And economies अब कितना increase करेंगे इस साल? 6%. India is the poorest. किसने बोला है? IMF. Is it clear or not? Okay. Retail inflation has crossed 6%. What is retail inflation? Buying and selling of basic things. The milk has got more expensive. Everything's got more expensive. And continues to remain high, leading to price pressure on the economic recovery process. It has also raised fear of stagnation in the Indian economy. What does stagflation means? Prices are rising, but the value of the money remains the same. It's not that people's income has increased. Yes or no? The high inflation will only further exacerbate the difficulties being faced by the poor. Okay, now export target. सबसे ज़्यादा इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा क्या एक्सपोर्ट किस चीज़ का हुआ है सबसे ज़्यादा? First quarter of fiscal year, the government has set a target of $400 billion merchandise exports. Merchandise में हमने बहुत ज़्यादा export किया. कौन सी चीज़ों में बता देता हूँ. First is merchandise. इसके targets लगाए हुए हैं and service exports, which were at 17 billion, jumped to 205 billion in 2020-2021. But अभी भी हम क्या है? Exports are lesser, imports are more. India has been progressing in which sector? Service, healthcare, home delivery, telecom, and technology. अब याद करने का तरीका बताता हूँ. Healthcare, hospitals, home delivery, Zomato, telecom, technology in terms of its softwares. गवर्नमेंट ने एक और चीज स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर वालों के लिए 40 लाख देने का बात कर दी है. अब गवर्नमेंट क्या करती है? एक स्कीम स्टार्ट की है. अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, so they will find him a patron which will give this software developer how much money? 40 lakhs. Why? Because technologically India is doing really well. Which two sectors? Service and वो तो सर्विस के अंदर आ गया. सर्विस एंड क्या? मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइज. India is rapidly progressing to become one of the largest digital markets, be it in fintech, edutech, and telemedicine. Software से related है सब कुछ. Finance, technology.
Measures being taken to boost foreign trade. The government has taken large number of this special economic zones. What does special economic zones mean? Tax mean 10 years tax free. Account for 30% of Indians exports. Center raises fair price of sugar cane. कितना increase किया? 10%. Has approved sugar cane by basic recovery of 10%. E-rupee ये क्या है? जो मैंने बताया था. वाउचर बना दिया. आपको चैनल दिखा देता हूँ. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक मजबूत ताकत है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के समाधान This is for telemedicine. Diksha, e-learning. की एक मजबूत ताकत है। डिजिटल इंडिया Telemedicine. Because of Corona, you could not go out. So, आप NHDM के through you can directly contact a doctor, and he can prescribe you medicine online itself. Is it clear or not? डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत So when I said this, that's what I said. ये चैनल देख लेना. नींद नहीं आती ये देख लेना. 2-3 नंबर ही आ जाएंगे. नरेंद्र मोदी. Subscribe, like, press the bell icon. को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की डिजिटल इंडिया के I just want to tell you what is going to be e-rupee like because that's the app, right? इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई-रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई-रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई-रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। Your basic phone also. If it's a basic phone, it will come as a message. The message will keep on getting stored. जब आपने किसी को दिखाना है तो आप वो दिखाओगे, फिर you'll get a जैसे हमारा वो आता नहीं है confirmation code. So you get a confirmation code, you feed it up, you give it to the other person. उसको वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. It's just like a prepaid voucher निकालो. बस और कुछ नहीं है. Is it clear? Or both it works with digital as well as non-digital. Like say for example, if you know कि आपने एक certain पैसा ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना किसी को, तो आप क्या करोगे? 10,000 ही दोगे. Yes or no? Not more than that. Continue. है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई-रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई-रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है।
इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई-रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई-रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई-रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना, जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है, को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई-रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। It's basically for that, right? So you're not going to give somebody an access to the entire money. Just create a code to return, but he has to pay the entire sum to the some person. ये नहीं है कि 500 रुपए इसमें से काट ले फिर 4,500 बच गए. It will not be like that. It will only for the purpose that you are using. Is it clear or not? So if he has a code in his phone, I'll have to scan the code. Now the second code will come to him. I have to fill that code because he has the code, right? इससे कोड मैं फीड करूंगा, देन इट गेट ट्रांसफर। और सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई हुआ था ये? कहाँ पे? फार्मर्स से नहीं, सबसे पहले हुआ है आपका कोविन ऐप में इंटीग्रेट किया गया। यस, हाँ, उसके अंदर भी डायरेक्ट वो आ जाता है, नोट मैसेज आ जाता है। तो जो सब्सिडीज हैं वो इसी तरीके से दे रहे हैं ई-रूपी। एवरीबडी क्लियर और नॉट? Okay, next 4.0 industry 4.0 framework for medium and small scale. First industrial revolution क्या था? Steam based machine. Second क्या था? Electric. Third क्या है? Computer and internet. Fourth क्या होगा? Artificial intelligence. Biodata for iClouds. What is industry 4.0? The term industry 4.0 was coined by German government in 2011. The government of other countries have also coined their own industrial initiatives like Industry 4.4. For example, the US calls it smart manufacturing. China calls it Made in China 2025. India refers to that Make in India or Digital India. First is ongoing automation of traditional manufacturing and industrial process using smart technology. With the technology such as additive manufacturing, Internet of Things, cyber physical systems, augmented reality, virtual reality, manufacturing industry will now be able to make data-driven decisions. So you're trying to convert all this into artificial intelligence. Okay, and dumping क्या होता है? जब कोई country आपकी country में goods बेचे सस्ते रेट पे, तो आप उस पे क्या लगा देते हो? Dumping duty. जैसे toys है, चाइना बहुत सस्ता मैन्युफैक्चर करती है, इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स बिल्कुल बाय बाय टाटा हो चुका था। सो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर टैक्स लगाती है। एक ऐसी चीज है जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना बंद कर दिया, वो कौन सी चीज है? विस्कोस स्टेपल फाइबर। इट इज बेसिकली समथिंग विच लुक्स लाइक आर्टिफिशियल कॉटन फाइबर्स, जो आपके वो होते हैं नहीं, नाइकी के आते हैं, एडिडास के आते हैं, ड्राई स्वेट क्लोथ्स कॉटन वाले, वो एग्जैक्टली यही है, विस्कोस स्टेपल फाइबर्स, ड्राई फिट्स। इज इट क्लियर? इस पे एंटी डंपिंग लगाना खत्म कर दिया है, बोल दिया आप जितना मर्जी देना चाहते हो आप दे सकते हो। इज इट क्लियर? नहीं तो किस डंपिंग क्या होता है? हम जैसे कि हमारे पे किसने डंपिंग का लगा दिया था? यूएस, इन केस ऑफ सोलर पैनल्स। वो कहता नहीं महंगा करके दो। Trump आया था, he made sure that the solar panels which were sent by India were made more expensive because the US manufacturers were making it at a more expensive rate. Is it clear? Sorry?
ये पक्का आएगा, गारंटीड है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। जो चीज अच्छी होती है वो तो पक्का आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया क्या है? सेकंड बेस्ट कंट्री। फर्स्ट कौन सी होगी? ब्रॉट बाय रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, कौन से? कुशमैन एंड वेकफील्ड। ऐसे क्लियर? अब इंडिया किस चीज पे सबसे ज्यादा है? अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेटिटिवनेस। 4 पैरामीटर्स है, कैपेबिलिटी टू रिस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द रिस्क। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंडिया में सबसे सस्ती है, चीप लेबर। इज इट क्लियर? कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट रिस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडिया लैग करता है। ये क्यों लैग किया था? एक चीज इंसिडेंट हुआ था, एप्पल वाला। एप्पल इंडस्ट्री में वो वर्कर्स ने तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले हुआ था गुड़गांव में, मारुति में। ऐसे क्लियर? ओके। किसने निकाला ये? कुशमैन एंड वेकफील्ड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? कितने पैरामीटर्स हैं? 4। इंडिया का सबसे इजी क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। National Industrial Corridor Program, 11 industrial corridors with 30 projects have been developed in 4 phases. National Industrial Corridor. इसमें क्या है कि आपने बोला है प्रमोट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डेवलप फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज, और सब इंडस्ट्रियल सिटीज को आप क्या बना दोगे? स्मार्ट सिटीज। Is to provide plug and play infrastructure facilities for setting up large scale manufacturing units. The National Industrial Corridor Development and Implementation is the overarching institution framework for implementation the program. Under the program, land parcels are developed for immediate allotment for manufacturing units. 11 units है basically, 11 sectors है। यही बहुत करते हैं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बस गवर्नमेंट स्कीम दे देती है। What is the name of the scheme? National Industrial Corridor Program. जो बिकॉज कॉरिडोर है, इसका मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ अवेलेबल होएगा दोनों के लिए, और आप क्या करोगे? बीच में लैंड प्रोवाइड कर दोगे फॉर इंडस्ट्रियल हब्स। नेक्स्ट, समृद्ध स्कीम क्या? स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स फॉर मेरिट फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन। अब एज आई सेड, इसमें क्या था? द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मेट स्टार्टअप हब, not only with the program provide funding support to startups, but will also help in bringing skill sets together which help them to become successful. सबको इकट्ठे कर रहे हो, समृद्ध, getting everybody together in smart skills. The government will support startups and entrepreneurs in the most challenging phase, which is the initial risk phase. समृद्ध किसके लिए है? I told you किसके लिए? सबको इकट्ठा कर दिया, उससे तू वो उठा ले, तो वो उठा ले, and getting them to have their ideas together. So government ने क्या करना है? Investment of up to how many lakhs? And growth is provided through selected accelerators. Is it clear? 300 startups will providing customer connect, investor connect, and international immersion in the next 3. आप एक entrepreneur को लेके आ रहे हो और उसके patron को लेके आ रहे हो। अब उसको, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किसी ने वोट के पास पैसे लगा दिए, वो बनाता गया मशीन, मशीन बिकती गई, इन्वेस्टर का पैसा बढ़ता गया। पर आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टर। उसमें आप क्या कर रहे हो? समृद्ध। लाइक से फॉर एग्जांपल, जोमैटो क्यों इतना ऊपर गया? चाइनीज ने पैसा लगाया, इन्वेस्टर आया। जोमैटो स्टिल इज मेकिंग लॉसेस दो। सेम बाईजूस, Chinese money, still making losses. But what you've done is you provided a investor. Is it clear or not? That is what it is. And who is going to provide it? The government. Ease 4.0. Finance Minister unveiled the 4th edition of Public Sector Banks Reforming Agenda, which is EASE. What does EASE mean? Enhance access and service excellence. आपने service provide करनी है. It encapsulates a synergetic approach to ensure prudent and clean lending, better customer service, simplified enhanced credit, and robust governance and HR practices. Like say for example, जब आप जाते हो, so they're going to be much better. अब SBI is also changed in its policy.
लोन का अप्रूवल क्या होता है, सब डिजिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया. दैट इज व्हाट आई मीन बाय ईज. नहीं तो होता था ना सबसे इजी, जब भी एसबीआई जाओ कोई काम में खास कर रहा होता है, फाइल रख जाओ, लंच टाइम हो गया. इज इट क्लियर और नॉट? अब उसको चेंज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, ईज 4.0 व्हिच इज गोइंग टू बी ऑल डिजिटलाइज. इज इट क्लियर? एचआर का मतलब क्या है, वो जब भी आप फोन करते हो कि मेरा कार्ड गुम गया, ये हो गया, ये चीज है टू इम्प्रूव द पब्लिक सेक्टर बैंक. अब एज आई सेड क्या है, स्मार्ट लेंडिंग, डायल अ लोन फॉर डोर स्टेप फैसिलिटेशन. लोन चाहिए घर पे आ जाएगा, अकाउंट बनाना होता है घर पे बन जाते हैं. यस और नो? क्रेडिट, एंड टू एंड डिजिटल रिटेल मीडियम स्केल लेसिंग, एनालिटिकल बेस्ड क्रेडिट ऑफिस. इसके लिए आपका क्या स्कोर अच्छा होना चाहिए? सिबिल, CCC, सिबिल क्रेडिट स्कोर. इज इट क्लियर और नॉट? एक लोन ले लो 1 लाख का, उसको टाइम पे दे दो, क्रेडिट स्कोर और अच्छा. डाटा इनेबल्ड, सिर्फ इससे कर लो बेटर है. डाटा इनेबल्ड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, डायल अ लोन फॉर एग्रीकल्चर, पार्टनरशिप विद एग्रीटेक्स, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग. आप कोई डॉक्यूमेंट लगाओगे बीच में, जो वो एसबीआई वालों का उनका काम ही नहीं रहेगा, वो ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते. डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे ऑटोमेटिकली, यू विल गेट इट थ्रू डिजिटल लॉ. 24/7 बैंकिंग विद रेजिडेंट टेक्नोलॉजी, डीपर पेनिट्रेशन एंड मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग. इन्होंने अपनी कौन सी ऐप बनाई है? योनो. क्लाउड बेस्ड आईटी सिस्टम्स एंड इम्प्रूव्ड साइबर रेजिलियंस, प्रोसेस ऑटोमेशन. नेक्स्ट, collaboration with financial digital payments in semi-urban and rural areas, scale delivery of doorstep banking services, co-lending with national rural banks. Is it clear or not? ये क्या है? Ease 4.0. तो डायरेक्टली आपने कुछ नहीं करना, हमने डॉक्यूमेंट पुट करते हैं उसके थ्रू. जैसे ये स्टार्ट किया था आईसीआईसी वगैरह ने, they used to come down to your home, take a picture and start your accounts. Yes or no? So the same thing what they're doing is now the PS. लोन का प्रोसेसिंग टाइम बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे तो आपको प्रॉपर्ली लोन मिल जाएगा. क्लियर है कि नहीं? ओके. फॉडर एंड फीड, इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है या कम है? कम है. उसका एक मेजर रीजन क्या है? जो हमारे कैटल्स हैं उनको प्रॉपर फॉडर नहीं मिलता, फीड नहीं मिलता. हाँ, मिलावट है. उसके लिए क्या होता है, India, this is one of the chief reasons why Indian livestock milk productivity is 20 to 60% lower than the global average. मशीन है, आलू पाओगे नहीं तो सोना कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है. Is it clear? So what we have is there is no proper fodder. और fodder improve करने की वजह से और fodder ना होने की वजह से कितना less production है, and the input costs are considered. It is found that feed constitute 60 to 70% of the milk production. दो प्रॉब्लम्स है, एक तो फीड अवेलेबल नहीं है और फीड ना होने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम है. दूसरा चीज क्या है, 60 to 70% कॉस्ट क्या है फीड की. तो आपने क्या किया था, सबमिशन ऑफ ऑर्डर एंड फीड डेवलपमेंट सबमिशन अंडर द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन. पहले आपने बोला था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन करेंगे, उसके अंदर फेल हो गया. अब आपने क्या किया, एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया है कि वो क्या बनाए, फॉडर क्रॉप्स. इज इट क्लियर? While the national livestock mission was launched in 2014, it focused on supporting farmers in producing fodder from non-forest wasteland and cultivation of coarse grain. The model could not sustain fodder availability due to lack of backward and forward linkages in the value chain. इसका मतलब क्या है, एक आदमी बना तो रहा है फॉडर, वो प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, तो उसको भी पैसा नहीं मिला. आगे फॉडर मिला लाइव स्टॉक वाले को नहीं. स्कीम बहुत अच्छी थी, बनाओ, सरकार लेगी, आगे बेच देगी, पैसा ही पैसा, सब अमीर ही अमीर. हुआ ये नहीं, linkages नहीं आए. So now what they've done, therefore, the mission has been revised to make the program focus primarily on assisting towards seed production and development of feed and fodder entrepreneurs. जो ये feed and fodder पे ही काम करें.
वो पैकेजिंग खुद ही करें, सब कुछ उगाएं, आगे किसको दें? गवर्नमेंट को। क्लियर और नॉट? नहीं तो गवर्नमेंट का आइडिया बहुत अच्छा था, तुम उगाओ, हम लेंगे, आगे बेचेंगे, सब पैसे, हर जगह पैसा ही पैसा। स्कीम बता दी सबको जोर जोर की, और स्कीम का पहला स्टेप के बाद ही प्रोक्योरमेंट के टाइम पे ये बेचारे जिन्होंने उगाई थी वो कहते कहाँ पे बेचे, कहते हैं काम हमें नहीं पता, ये क्या उगाया तूने? तो ये कहते ये क्या उगाया, फॉर्डर क्या उगाया, हम नहीं खा, ये तो रेट नहीं मिलने वाला, तो खत्म। Okay, India takes UNSC presidency term. India has taken over month-long presidency for the United Nations Security Council in August 2021. 15 minutes without break. India has outlined the following focus areas: maritime security and counter terrorism. India is now the first time what month-long presidency. This is not the first time. We have done it earlier in 2011. अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीजें important है. Okay, ये सब वापस फिर से पढ़ेंगे. Additional, India is elected non-permanent member for the Security Council and receives support of Asia Pacific countries. Okay, क्या US या Biden regime इंडिया को सपोर्ट कर रहा है परमानेंट सीट के लिए? हाँ, बिडेन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, दे आर नॉन कमिटेड, कुछ बोला ही नहीं है. हाँ, वीटो पावर मत दो, सेम यूएस बोल रहा है. यूएस बोल रहा है वीटो पावर और कंट्रीज को मिलनी नहीं चाहिए, परमानेंट सीट दे दो पर वीटो पावर नहीं दो. अब यूएस कहता पहले पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, कौन सी कंट्रीज वाउच कर रही हैं परमानेंट सीट के लिए? G4 कंट्रीज बोलते हैं. कौन सी 4 कंट्रीज हैं? हम चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. हम कहते हैं एक को तो दो. कौन सी कंट्रीज बोल रही हैं कि यूनाइट? यूएस क्या बोलता है? यूएस बोलता है रीजनल डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली, अर्जेंटीना अपोज कर रहे हैं G4 को. पाकिस्तान किसको सपोर्ट अपोज कर रहा है? बट ऑब्वियस साउथ कोरिया, जापान, इटली, अर्जेंटीना. चार कंट्री आपस में लगी हैं. हाँ, तू बन जा, चल बन हो गए. और यूएस क्या बोल रहे हैं? नहीं. सो राइट नाउ, बट द ट्रम्प regime was pushing for it, getting India. इन कंट्रीज जो अपोज कर रही है ये क्या है? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. ब्राजील को अपोज कौन करेगा? अर्जेंटीना, बिकॉज ब्राजील एंड अर्जेंटीना का खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट है. इंडिया को तो बट ऑब्वियस कौन करेगा? और जर्मनी को कौन अपोज कर रहा है? इटली, हिटलर, मुसोलिनी. देखो, दोनों दोस्त भाई एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. साउथ कोरिया को कौन अपोज कर रहा है? जापान. किसको? सॉरी, जापान को कौन अपोज कर रहा है? साउथ कोरिया. वो कह रहे हैं हमें क्यों नहीं मिले. इज इट क्लियर? ये 4 कंट्रीज. अगेन आई एम जस्ट गोना गो बैक टू इट. एज आई सेड, कितने थे हमारे पास? This is not the first time. The UNSC presidency is held by each of the council members for a single month based on the alphabetical order. पहले A, फिर B, फिर C, ऐसे चलता रहे. The presidency for the month of August will be India's first time at the helm of United Nations most important body during 2021-22 tenure as a non-permanent member of the Security Council. Permanent members कितने हैं? 5. India is one of the 4 non-permanent members, right? The India's last assumed the presidency in 2011. It will again preside over in December 2022, the last month of the 2-year
2 साल का टेन्योर होता है ना, 4 टर्म चेंज करते रहते हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी में हमने बात किया एनहांसिंग मैरिटाइम। इंडिया ने कौन सा प्लान लॉन्च किया था मैरिटाइम सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए? सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। सागर इज एम्ड, ये कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं है, उसको अपोज करने के लिए हमने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सागर। दिस इज वेयर वी वांटेड टू मेक डिफरेंट पोर्ट्स एवरीवेयर, डिडंट वर्क थ्रू मच। India had resolved maritime boundaries with which country? Bangladesh. Peacetime keeping operations, हमने एक ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप है? इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया हैज हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ peacekeeping missions and maximum number of 175 have made supreme 49 UN peacekeeping missions में जा चुके हैं। पर वो कंट्री सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है जो Yes, Manish. Where is Manish part 1? Where is your best friend? Where? Kharad. And where is Manish? Did you vote Manish yesterday? Right. Back. So, deploying more than 250,000 of troops over the years, as many as 49 keep, okay, peacekeeping missions. But who's the largest contributor in UN? Money-wise? US. There is a what we known as a special drawing rights, according to the money that you contribute. सबसे ज़्यादा किसके पास है? And now who's coming up? China. जो ज़्यादा पैसा देगा वो ज़्यादा कंट्रोल करता है। इंडिया ने कौन सी ऐप बनाई है? यूनाइट अवेयर, स्पेशली दी है रेजिडेंसी के टाइम। कोविन क्या हो चुकी है? कौन सी क्या ऐप हो चुकी है? ओपन सोर्स। व्हाट डज ओपन सोर्स मीन? कोई भी आके चेक कर सकता है और इस ऐप के थ्रू बना सकता है, कोई कंट्री बना सकता है। इज इट क्लियर? तो वैसे ही हमने एज ए सेड वो कौन सी ऐप के लिए कौन से हमने वो स्कीम स्टार्ट की है? समृद्ध। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सी की है? समृद्ध। जहां पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एंटरप्रेन्योर है वो, उसको चाहिए पैसा, कौन देगा? आप बस प्रोवाइड कर रहे हो। बिकॉज इंडिया हैज नाउ वर्क, इफ यू टॉक अबाउट इट, इंडिया में अभी जो ग्रोथ हुई है, एग्जाम्पल ओयो, हाँ, Byju's, Zomato. Okay, losses, but the money has come now. Workers have got job. Uber, Ola, all these are based on softwares. That's what we are working. Now, when you talk about the example of also Covin, the biggest app to handle such a big data. प्रॉब्लम क्या हो सकती है कोविन में? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डाटा थेफ्ट हो सकता है। यस, लीक, तेरा डाटा लेने गए, कब इंजेक्शन लगा, क्यों इंजेक्शन लगा, कितने टाइम पे लगा, और वो जीरो भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ हो जाता है। क्या? ओके, कौन सी ऐप है? यूनाइट अवेयर।
इसमें क्या होता है, रियल टाइम इमेजिंग होती है कि कहाँ पे लोग कहाँ पे हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे हैं. Partnership with UN to help enhance the safety of UN peacekeeping forces, improve situational awareness for peacekeepers, allowing a visualizing, coordinating and monitoring of peacekeeping operations from a real-time basis. You get to understand कौन कहाँ पे है, imaging देंगे आपको. कौन सी ऐप है? Unite Aware, इंडिया ने दी है. अब्राहम अकॉर्ड क्या था? यूएई और इजराइल के साथ. सबसे पहली कौन सी कंट्री थी जिसने, अरब कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया था? इजिप्ट. वे लॉन्ग. जॉर्डन. फिर आया यूएई और बहरीन. किसने पास किया था ये अकॉर्ड, किसने बनाया था? ट्रम्प. Yes. So during this time now what happens is it is opening up all Arab countries towards Israel. India को इससे क्या benefit हो सकता है? India is trading partner with both of them. So India क्या कर रहा है? India welcomed the Abraham Accord since it shared cordial relationship with all the signatories of the accord. सबसे पहले किसने बनाए थे इसराइल के साथ relationships? Important है. Egypt. Israel, पैलेस्टीन का बॉर्डर किससे लगता है? Egypt. As you know, majority of the Hamas को कौन सपोर्ट कर रहा है? पहले कहां से आता था? इजिप्ट से. वो टनल्स के थ्रू भेजते थे, रॉकेट्स एंड ऑल. अब इजिप्ट की गवर्नमेंट चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. India could gain unprecedented benefits as a result of the accord, which would offer peace and stability in the region. Because India का largest exporter कौन सा है? UAE. We are exporting maximum to as a country, and with Israel being there, we are going to get more benefit. And the signing of the accord has removed a significant strategic obstacle for New Delhi. In 2020, Indian Army Chief visited UAE and Saudi Arabia, becoming the first chief of Indian Army to do so. Now India is also training with their pilots. UAE did not have its air force. India is the one who trained them. The foundation for these visits laid in 2007 when a deal was concluded with Muscat for access of Duqm port, including dry dock used for Indian Navy. Biden government non-committal, I told you. कौन सी 4 countries compete कर रही हैं? इंडिया. पाकिस्तान कहाँ compete करेगी? पाकिस्तान तो वैसे ही नंगी है. उनके पास खुद का वैसे नहीं है. Art and culture. ये बहुत important. It has been found that ancestral Dravidian tongues were spoken in the Indus Valley. Which were these languages? Brahui and Burukshakshi. These are Dravidian. This is not Dravidian language. South Indian languages. That these languages were initially spoken in the Indus Valley civilization. बहुत important discovery है. कौन सी है? Brahui and Burukshi is a North Dravidian language spoken primarily to the Brahui people in central parts of Baluch province in Pakistan and scattered parts of Iran, Afghanistan and Turkmenistan. Burukshi is a language isolated spoken by Brosho people who reside almost entirely in North Gilgit, Pakistan, with a few hundred speakers in northern Jammu and Kashmir. A recent publication provided crucial evidence of the ancestral Dravidian languages possibly spoken by significant population in the Indus Valley civilization. कौन सी है? Brahui and Burukshi. अब वो उसी साइड पे रह गए. वहां से हमने कंपेयर किया और देखा कि ये तो Dravidian languages क्या है. So say for example, you go there, you will be able to understand them also. Few people. This finding is based on common proto-words between the ancestral Dravidian languages and the documented in Indus Valley civilization. Deep points of linguistic ancestry between the two regions. Is it clear? Brahui and Burukshi. Wachua festival कहाँ पे होता है? Important है. Wanchuma. Karbi Along, Assam. Tribes है. Tiva tribe. Wanchuma. Generally, it's for harvesting. It involves songs and good harvest. Involves song, dances, and bunch of ritual performed by people clad in their native
वन चूहा कहाँ पे है? कार्बी अलोंग, असम. What is it for? Harvesting. Madur mats कहाँ के हैं? It is Madur Kathi is a rhizome-based plant found abundantly in West Bengal. इसको GI tag भी मिला है because ये सिर्फ वहाँ पे available होता है. उसी plant से बनाया है. एक और चीज है, these are biodegradable and they have been used as now yoga mats. मतलब कि अगर आपने use करके फेंक भी दिया, they will degrade. They will not cause any harm to the or pollution to the environment. कौन से mats है? Mother mats. Entire workforce engaged in comprised of women. पश्मीना शॉल्स क्यों फेमस है? कहाँ पे? अशोक के टाइम से है, कश्मीर से. For producing the most exclusive pashmina shawls in the world. The pashmina has been derived from the Persian root pasham, which means a weavable fiber precisely known as wool. The Kashmir wool used for making pashmina comes from a special breed of Kashmiri goats known as the Changtangi, found in the high altitude regions of the Himalayas. The fine variant of spun Kashmir is derived from the animal hair fiber forming the downy undercoat of the Changtai. Pashmina comes from which goat? Changtangi. Changtangi. Emperor Ashoka के time से. A pashmina can be folded into your hand. The entire shawl passes through a ring. That's how you get to realize it is very expensive. Correct. The entire shawl was gifted in a matchbox. It's and it's like proper बड़ी हो जाती है, proper shawl है, very warm, but इतना सा squeeze हो जाती है. Okay, break now.